you. Namaste, a very good evening to all over here. I, Jagrati Raizada, extend a warm welcome to all of you who are present here in this auditorium at this hour. There's one thing which always we yearns for, we always look forward to. We always want that somebody to provide that to us, knowing that it is within us. I think you're guessing it right. It's the word called motivation. So motivation, coming to the realms of self-discipline, behavior adds value to oneself. You feel more confident about yourself. So better than me, I've got a very eminent speaker whose prestigious presence amongst us is there, Mr. Vinod Tiwari, who would be the right person to talk about these words and let us know more about these realms of motivation, behavioral skills and soft skills in general what we call. Before I invite him to take over the audience, I would like to give a kind of a brief about his phenomenal career so far. Mostly I've shared this with everybody of us, and again I would like to repeat. Mr. Vinod Tiwari is popularly known as magician of words in both the worlds. Being basically from an engineering background, he is the author of the latest bestseller book, which is called From Dreaming to Achieving, That's Life. He is based out of Abu Dhabi and has been associated for some senior leadership program in the fields of philanthropy activities, promotion of education and yoga. Last 25 years he has been a technocrat of rich and insightful experience in administration, leadership, project and services, and of course the fields like sales, marketing and business development. But the most prestigious which comes as a kind of he has been recently awarded as Most Innovative Solar Energy Expert of the Year during International Business Awards 2019 at Atlantis, the Palm, Dubai. The support, the Indian government flagship, he has supported well the Indian government flagship initiative of Atal Innovation Mission, that is AIM, and he has been again selected as Mentor of Change by Niti Aayog. So private, public, government, all spheres he's there, and we are today at Apollo Hospitals are privileged to have him in your presence, in our presence. Thank you for listening to me. One last thing that I would like to add in his introduction is his life journey has been like a roller coaster, what has been shared on his website as well. His stories of personal losses, failures, rejections, disgust, relationship challenges, and sometimes suicidal tendencies also. But then he has bounced back every time when he was let down by his own emotional things. And not only that, but then way to go, he has inspired a lot of us, a lot of people like us. So he is here, I would say, the life coach and the author of the bestseller. We welcome you, sir. And with that, I would like to felicitate you, or I will request our co-sir to felicitate him with a bouquet of flowers, as our tradition goes to welcome the dignitary. Good morning. Good afternoon. Yes, I wanted to check Apollo guys. How are you doing? Very well. मुझे वैसे गुड आफ्टरनून की आवाज ही नहीं है, मुझे शुरू ही नहीं करना चाहिए। गुड आफ्टरनून। अभी भी बढ़िया से नहीं है, आधे लोग तो बोल रहे हैं, आधे लोग तो। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। Very good. So I'm so excited to be here, and before I start, I would like to thank Apollo management, especially Mr. Goyal and Mr. Shahid. All credit goes to them. So can we give a big clap to all of them? Thank you very much. So I hope that mic is not required or required. Required? Yes. Okay. So I would like to know my audience. Hello. I would like to know with whom I am talking. So
it's not possible to talk with each one of you, but I want to know how many doctors, how many nurses and administrative and staff. So how many doctors are here right now? May I just see hands? Wow, can we clap for doctors? Thank you. And what is the majority of crowd? Nurses, the backbone of the hospital industry. Can I see all nurses' hands? Nurses and clinical staff. Okay जी. Paramedical staff भी. कितने हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Can you make a big clapping for them? और कौन है? नर्सिंग स्टूडेंट्स भी हैं. कितने हैं भाई स्टूडेंट्स? Wow, great. Salute to students. Clap for yourself. I could see there are few more hands which did not raise up. वो कौन है? Administration, management. Administration and management. Can I see all administrative staff and management staff? Very good, great. Can we clap for all of them? Very good. So let's start. Before I start, I want to talk to the students. What for you are here, guys? आज ये जो सेमिनार या जो वर्कशॉप रखा गया है, are you aware what for it is? Motivation? Yes? किस चीज के लिए motivation? Why you need motivation? What for? Midlife crisis. Midlife crisis? Why do you need motivation? पहले मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि इनको डिसहार्टन फील ना हो, बट मैं यहाँ पर किसी को भी मोटिवेट करने के लिए नहीं आया. Very sorry. Yes. And let me tell you, nobody can motivate you. Rather, you can motivate yourself. Because motivation is outside and motivation is temporary. Motivation is outside and motivation is temporary. I am here to inspire you. Because inspire is from inside and inspiration is permanent. So what do you want? To be motivated or to be inspired? Inspired. That is the best thing. Once you inspired, then khalas. You don't need any kind of motivation in your life, right? So better, I would like to inspire you rather to be motivated. Okay? देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मैं कुछ भाषण, लेक्चर, कुछ इस तरीके का नहीं बताऊंगा. मेरे पास जो कुछ है, मैं I would like to share with all of you. Right? यहाँ पे भी जा सकता हूँ. Good. तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप जानते हैं, जो आपको ऑलरेडी पता है. I will try to share my experience, right? I know that major of things maybe you are aware, okay? If you think that there is something, I would like to interact with you. Is that okay? It should be dialogue, not monologue. मेरा बोलने का काम नहीं है, okay? मैं आपसे भी सुनना चाहता हूँ. Is that okay? Yes? हाँ कि ना? Yes. Very good. So okay. यहाँ से आज आप जब निकलेंगे 1 घंटे के बाद तकरीबन, तो 1 घंटे के बाद में कम से कम एक मैसेज जरूर लेके जाए. एक मैसेज. I don't want this whole seminar may not be for you. It's not for you. There would be at least one thing which should spark you, which should ignite you. Okay? And I want you to be openly mindly sitting. कहते हैं ना कि पैराशूट और माइंड कब काम करता है? When it is open. So please sit here openly minded, right? आप ओपन माइंड के साथ में बैठिए. बारिश होती है तो उस आदमी के घर में पानी आता है, उस आदमी घड़ा भरता है जिसका घड़ा सीधा होता है, बराबर? ओके? तो घड़े को उल्टा मत रखिए. फिजिकली आप सब लोग यहाँ पर हैं, मैं चाहता हूँ मेंटली भी यहाँ पर रहें, बराबर? Tell me one thing, कि which language do you prefer? English? Hindi? Mix? Mix? Beloved?
वैसे मैं बताऊं आपको, हिंदी भी सरल भाषा नहीं है, हिंदी भी सरल भाषा नहीं है। एक साहब आए थे अमेरिका से, तो वो उनको इंडिया आना था, तो वो सोचे इंडिया में हिंदी चलती तो पूरा हिंदी सीख के आए। जब वो इंडिया में यहाँ पर आए 2 साल का हिंदी सीख करके, तो यहाँ पर आकर के वो एक सज्जन के पास जाकर के बोलते, ए चक्र अभियंता, मेरी चक्रणि का अग्र चक्र कुछ वक्र हो गया है, जरा इसे सरल कर दीजिए। तो वो घूम गया, कहते साहब कौन सी भाषा बोल रहे, प्योर हिंदी बोलो। मतलब समझ में आया सर आपको? नहीं आया? अभी चक्र मतलब साइकिल वाला इंजीनियर, तो साइकिल वाले इंजीनियर को थोड़ा बोलोगे ओए, तो सर साइकिल के इंजीनियर मेरी चक्री, चक्री मतलब साइकिल का अग्र चक्र, आगे वो उर्दू वर्ड है, अग्र इज हिंदी वर्ड, अग्र चक्र आगे का पहिया, वक्र। So it is not easy. So I am going to talk about something which is very much general. Okay, I'll not go specifically into particular any field or any aspect. Okay, I'll just touch upon the basic aspects. Just now I was interacting with Mr. Goyal, तो I came to know कि आपका जो अपोलो है, is going like anything. आपकी जो अपोलो की ग्रोथ है ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर गुजरात और चेन्नई में जिस तरीके का सेटअप है, इट इज जस्ट अमेजिंग एंड आई एम ट्रूली वेरी मच inspired by this one. So I want to salute to Apollo. So आप अपने लिए एक बार बढ़िया ताली बजा सकते हैं कि आप you are doing tremendous job. तो कुछ हम जनरल बातें करेंगे, ठीक है? शायद इसमें कुछ स्कैनिंग चल रही है साहब, हाँ? ओके, सो आपको एक चीज शुरू करता हूँ उससे पहले कि ये चीज शुरू हो। जो मेरी पहली स्लाइड बोलती है वो ये बोलती है कि आप जिंदगी में सब लोग दौड़ रहे हैं, एवरीबॉडी इज रनिंग, मी, यू, ही, शी, सब लोग दौड़ रहे हैं। व्हाट फॉर यू आर रनिंग? बराबर है, आप सब लोग दौड़ रहे हैं, हम लोग सब लोग दौड़ रहे हैं, हम किस चीज के लिए दौड़ रहे हैं? मैं इसकी सैनिडिटी बताने के लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक जंगल के अंदर में शेर था, जो शेर जब अपने गुफा से निकला तो शेर जैसे ही सुबह उठा और उठते ही उसको अपने गुफा के बाहर एक बढ़िया सा व्हाइट कलर का तंदुरुस्त खरगोश मिल गया। उसे लगा शायद ज़ोमैटो डिलीवरी, होम डिलीवरी होगी, ग्रेट एंड इतना खुश बोलता है ओके, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट मेरे हाथ आ गया, बड़े इजीली थोड़ा आलस में उसको झपटा और खरगोश वहाँ सतर्क फिसल गया, निकल गया। खरगोश निकल गया, उसे गुस्सा इसलिए करके नहीं है, उसे छोड़ूंगा नहीं क्योंकि मेरे सामने आया था, तो ही स्टार्टेड चेजिंग दिस खरगोश। खरगोश के पीछे पीछे भागता रहा, खरगोश आगे आगे, शेर पीछे पीछे। लंच के वक्त निकल गया, भागते 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 10, 11, 12 लंच का टाइम हो गया। लंच भी आगे निकल गया, ब्रेकफास्ट से लंच, लंच से शाम हो गई और इवनिंग हो गई, और अभी भी ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह उसे शेर नहीं पकड़ पाया। और लास्ट में जो खरगोश था वो क्या ढूंढ रहा था, क्यों भाग रहा था? सर्वाइवल। क्या ढूंढ रहा था? गुफा, अपनी गुफा ढूंढ रहा था, अपने घर ढूंढ रहा था ना। आप शाम को कहाँ भागते हो? गाड़ी से। अपनी गुफा है घर, मतलब तो वो अपना गुफा ढूंढ रहा था। जैसे ही वो गुफा में घुसा, he was so satisfied, सेफ हो गया, अंदर घुसते ही सेफ, he was happy, सुस्ताने लगा, कहता है मजा आ गया, बच गया, जिंदगी बच गई। अब खरगोश तो सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन जो शेर था he was mad, वो पागल हो गया। कहता है कि how could that happen कि मैं सुबह से लेकर के और शाम तक इसके पीछे दौड़ा, चला गया वो कोई बात नहीं, मैं तो दूसरा पकड़ लूंगा, लेकिन ये हुआ कैसे? मैं बूढ़ा हो गया, क्या मैं शक्ति खत्म हो गई, क्या मेरी स्पीड अच्छी नहीं रही? बहुत सारे क्वेश्चन आए उसके दिमाग में। उसने सोचा क्यों ना मैं इसी से पूछूं। उसने बोला खरगोश भाई साहब एक बात पूछनी थी। उसने कहा चल, सुबह से शाम तक मेरा हालत खराब कर दिया और बता दिए मेरे को, प्लीज एक आपसे पूछना है, आप मुझे बता दो, मैं आपको वादा करता हूँ कभी जिंदगी नहीं खाऊंगा, मुझे प्लीज एक बात का जवाब दे दीजिए। कहता है पूछिए। कहता है कि क्या वजह रही कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाया, सुबह से शाम हो गई और मैं तुमसे हर चीज में बड़ा हूँ, बराबर है, बड़ा है उसका कर, उसका फुर्तीलापन, उसकी बॉडी, उसकी स्टेमिना, एवरीथिंग इज मोर। व्हाई? खरगोश ने क्या जवाब दिया होगा? वैसे मैं बताऊं उसके पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्या जवाब दिया होगा? आप में मोटिवेशन नहीं है, क्या जवाब दिया? देखिए इनके लिए मैं क्रैक करना चाहता हूँ, मैं ऐसे ही चाहता हूँ कि सब लोगों की तरफ से जवाब आए। थैंक यू वेरी मच।
बताइए आप सबके दिमाग में कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है, मुझे पता है। बोलिए क्या बोला होगा खरगोश ने? We didn't have any other option. और क्या चीज आपको लगता है? Thank you very much. What do you think? जी हाँ, बताएं। बड़ी सिंपल सी चीज खरगोश ने बोली। खरगोश कहता है शेर भैया कितना सिंपल सा सवाल, आप बताना चाहेंगे? प्लीज बोलिए। Lion ran for the food and the rabbit ran for his life. Come again. The lion ran for his food and the rabbit ran for his life. गुड, इनके लिए एक बार ताली है। क्या नाम है? संतोष जी के लिए ग्रेट। Excuse me, sir. She wants to tell you something. यस प्लीज। बाकी बहुत सारे लोग भी यही बोलने वाले थे। नहीं, दैट इज ट्रू, यू आर आल्सो करेक्ट। सी, बड़ी सिंपल सी चीज बोली खरगोश ने। बोला इसमें कौन सी कठिन बात थी? तुम सुबह से शाम तक भाग रहे थे लंच के लिए, और मैं बाद सुबह से शाम भाग रहा था लाइफ के लिए। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप कौन हो, फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या हो, फर्क इससे नहीं पड़ता कि आपका कलर, काफी हाई कलर, रिलीजन क्या है, आपकी एजुकेशन से भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप भाग किस चीज के लिए, आप किस चीज के लिए भागना चाहते हो, लाइफ या लंच? जोर से बोलिए। दैट इज द थिंग। सो दिस इज माय फर्स्ट राइट जो बोलती थी, बट फॉर योर रनिंग। अब इससे क्या मैसेज मिला आपको? इस स्टोरी से क्या मैसेज मिला? You can outrun anyone, correct? आप किसी को भी पीछे छोड़ सकते हैं यदि आप ब्लैंक स्पेस भरिए। कैसे आप किसी को भी पीछे कैसे छोड़ सकते हैं? यदि आपके जीने, क्लैप इनके लिए भी हो। अरे भैया, डू और डाई, डोंट ट्राई। लोग कहते हैं ट्राई कर रहा हूं। मैं कई लोगों से पूछता हूं, कई लोग मुझे कई सारी चीजों का जवाब मैं पूछता हूं कि साहब ये हो जाएगा, कहता है आई विल ट्राई। और मुझे पता है ट्राई का रिप्लाई क्या होता है, ट्राई का मतलब क्या होता है। मैं कहता हूं समझ जाता हूं, कहता हूं ओके आई गॉट देयर आंसर। कहते हैं नहीं हम ट्राई करेंगे। यू कैन नॉट ट्राई, यू शुड नॉट ट्राई। आप आज बताइए आज कितने लोग शाम को घर जाएंगे अपने, और कितने लोग घर जाने का ट्राई करेंगे? बराबर? As simple as what you want to do, you do it, right? And what you don't want to do, you make excuses. You make yourself foolish or justify yourself, right? So as simple as that, do or die. जैसा इन्होंने बोला, if you can outrun anybody if you have your big goals in front of you, correct? Second क्या चीज है? Your age, color, height, education and religious does not matter. जैसे मैंने आपको पहले बोला। देखिए आज इस सेमिनार के बाद में आप किसी को भी ये बहाना तो बनाने लायक बचेगी कि साहब मैं ऐसा हूं इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाया। बराबर? आज मैंने ये चीज क्लियर कर दी। कई लोग बोलते हैं ना आपने ऐसा क्यों नहीं किया, बोले साहब मैं मेरा ये बैकग्राउंड लिस्ट बहुत बड़ी होती है। मेरी वाइफ, अरे साहब आप जानते नहीं, मेरा पेरेंट्स, ओह माय गॉड, मेरा गांव, मेरी एजुकेशन। अरे भैया इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। If you want to do it, you do it. As simple as that. मैं यदि आपको कुछ लोगों के एग्जांपल बताना शुरू करूंगा तो बहुत बड़ी लिस्ट है, आप जानते भी होंगे। बराबर है? So this is as simple as that. Second thing, it does not matter where you are today. जैसे मैंने आपको बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कहाँ हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आपको जाना कहाँ है. Where you want to go, that is more important. Does not matter where you are today, what you are today. And the last good thing is that आने वाला कल आपकी जिंदगी का पहला दिन है. You can control, alt and tell your life. You can start new life from tomorrow. So are you ready for it? Yes. So एक प्रश्न पूछना चाह रहा था मैं आपसे. When did you sharpen your axe? आपने पिछली बार अपनी कुल्हाड़ी कब तेज करी थी? I don't know कितने लोगों को ये चीज पता होगी. देखिए क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें ना उनका वुड कटर का काम था, लकड़ी काटने का काम था. तो वहाँ पर लकड़ी पेड़ काटे जाते थे. तो एक साहब थे, एक लकड़हारा था जो दिन के 10 पेड़ रोज काटता था और रोज काटता था और कई महीनों से कई सालों से काटता रहा था. पीछे आप सुनाई दे रही ना आपको? ओके. तो 10 पेड़ का एवरेज था.
एक नया आदमी ने ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया है, जैसे यहाँ पे नए लोग ज्वाइन करते होंगे, तो वो थोड़ा सा एक्साइटमेंट दिखाने के लिए उसने पहले दिन 15 पेड़ काटे, 10 नहीं 15, और 10 पेड़ कई सालों से कटे आ रहे थे, उसने 15 पेड़ काटे तो मैनेजमेंट थोड़ा प्रभावित हो गया। लेकिन वो एक दिन नहीं हुआ, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी, और वो 15 ही पेड़ काट के ना उनका इंक्रीमेंट का टाइम आया तो जो नया वाला था उसको डेफिनेटली ज़्यादा ही मिलना था। अब वो पुराना वाला मुंह फुला के बैठ गया। व्हाट इज दिस? मैं 10 साल से मतलब 10 साल से मैं तो इतना पुराना भाई आउटपुट देख, वो 15 काटता है तो बोले ये पॉसिबल ही नहीं, ये तो मैं पूरा टाइम सुबह से जाकर के 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक पूरा टाइम करता हूँ। हाउ इज पॉसिबल? कुछ दोनों भी बोले क्या दोनों भी रोज देखते हैं? तो कहता ओके। अब दोनों ने डिसाइड किया, हालांकि दोनों को क्यूरियोसिटी थी कि होता कैसे है, क्योंकि उसको भी बिलीव नहीं हो रहा था, 10 साल से कंटिन्यूस काम कर रहा है। तो व्हाट दे डिड कि चुपचाप से उसको चुप करके देखने के लिए गए कि होता कैसे है। सो व्हाट दे फाउंड कि जो नया वाला बंदा था वो जब कुल्हाड़ी लेकर के वहां पर पेड़ काटने के लिए गया तो उसने मस्त बढ़िया तरीके से पूरी एनर्जी के साथ में, एंथुसियाज्म के साथ में पेड़ काटना शुरू किया और 2 घंटे तक खट 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 कंटिन्यूस पेड़ काटे। और 2 घंटे के बाद में उसने लिया एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में उसने क्या किया, बैठ करके अपनी कुल्हाड़ी को बढ़िया तरीके से शार्प किया। एंड अगेन ही डिड द सेम थिंग, खट 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 खट, और फिर उसने एक ब्रेक लिया और इस पूरे प्रोसेस में उन्होंने देखा बड़े आराम से उसने 15 पेड़ काटे बगैर किसी मेहनत के। तो मालिक ने उससे पूछा कि तुमने अपनी कुल्हाड़ी लास्ट टाइम कब हाथ करी? तो वो बोलता है साहब मुझे याद ही नहीं, कब पड़ेगा। राइट? तो मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। दरअसल हमारी जिंदगी में क्या होता है कि हम एक वक्त तक तो अपनी कुल्हाड़ी तेज करते हैं, ये वाली कुल्हाड़ी, राइट? we learn, we read, we learn, we read and we grow in the schools, in college and all, grow करते हैं ना। उसके बाद में एक टाइम के बाद में आ जाता है वो, अब हम तो पढ़ लिए सब कुछ, ऐसे डॉक्टर लोग तो बहुत पढ़ते हैं, you know, you have to keep reading, you have to keep yourself updated, but still I see that people stop learning anything, they stop learning, and once you stop learning you stop doing, as simple as that, very blunt but very true, बराबर? तो ये बहुत जरूरी है। तो आज आप अपनी एक्स को शार्पन करने आए हैं, तो आज आप उसके लिए ताली बजाइए जो आपकी सीट पर बैठा हुआ है, अपने लिए ताली बजाइए। So, ये सिंपल सुना होगा आपने, वॉच योर वर्ड्स इट बिकम्स योर एक्शन, बराबर है? देखिए वर्ड्स से एक्शन कैसे हो जाते हैं, हालांकि ये तो सिंपल सा कोट आपने सुना होगा, लेकिन वर्ड्स में बहुत पावर है। यानी आप जो बोलते हो वो आपका दिमाग सुनता है और आपका दिमाग बिलीव करता है, इसलिए योर वर्ड्स आर मोर पावरफुल फॉर योर फ्यूचर, फॉर योरसेल्फ, बराबर है? जैसे हमारे यहाँ पे बड़ी मजेदार बात है कि किसी से भी पूछा जाता है हाउ आर यू, तो आप क्या बोलते हैं? आई एम फाइन थैंक यू, ओके? हमारे पर मैं वहाँ पे अबू धाबी में ज़्यादातर यही जवाब देता हूँ, 90% यही जवाब देता हूँ, आई एम नॉट फाइन थैंक यू। तो एकदम कई बार लोग पूछते हैं व्हाई यू आर नॉट फाइन, तो भाई जरूरी थोड़ा है रोज ही झूठ बोले, रोबोट ना कि स्विच चलाए तो लाइट ऑन हो गई, हमेशा आई एम फाइन थैंक यू बोल रहे हैं, आई कैन से आई एम नॉट फाइन। सो हमें ये सिखाया जाता है, बट ये क्यों है, उसके पीछे एक रीजन है। व्हेन यू से आई एम फाइन थैंक यू, इट मींस यू इवन यू आर नॉट फाइन, यू बिकम फाइन, राइट? आपसे कोई पूछता है कि आप कैसे हैं, आप बोलते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ, तो आप इसको ऐसे करके नहीं बोल सकते, ऐसे नहीं बोल सकते। लेकिन आपको उल्टा है, यदि आपको बोलना है कि नहीं बहुत बुरा है, बहुत गलत है, दिनों से तबीयत खराब, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते बहुत अच्छा है, हालत खराब चल रही है तो यार। सो वर्ड से एक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है? योर वर्ड्स योर एक्शन, यू एक्ट एज पर योर वर्ड्स। So it is very important what you say. When you say, you act accordingly. You show yourself. You prove what you are saying is correct. आप अपने words को justify करते हैं. So this is very important that your words becomes your action. Now your action becomes your thought. बराबर है? आप जैसा जैसा बोलते जाते हैं, आप अपनी mind की खुद प्रोग्रामिंग करते हैं, लिखते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। IT वाले लोग उसे बड़े अच्छे से समझ जाते हैं प्रोग्रामिंग क्या होता है, बराबर है? तो हम जब हमारा जब जन्म होता है तो हमारा एक प्लेन पेपर होता है, हम खाली कागज होते हैं और उस पर सब लोग बैठ करके हमारे बारे में लिखते हैं उस प्लेन कागज पर, हमारे बारे में अच्छा बुरा बुरा अच्छा सब लोग बैठ करके लिखते हैं, दोस्त भाई रिश्तेदार, तू ऐसा है, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तू ऐसा नहीं है, तू वो नहीं है, तू ये नहीं है। और ज्यादातर वो क्या क्या लिखते हैं, यस की नो लिखते हैं,
नो लिखते जाओ। ऑल द टाइम यू लिसन, नो 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 नो। बचपन से आपको ये बोला था, ये मत करना, वो मत करना, ऐसा नहीं करना, वहां मत जाना, इससे मत मिलना, वो मत खाना, ये मत खाना। यू लिसन सो मेनी टाइम्स नो कि योर माइंड बिकम्स more negative than positive. This is the problem. We create one circle and we think this is me. That's all. हम इससे बड़े नहीं, हमको लगता है हम यही हैं। हम एक वो इमेज बना लेते हैं उसके आधार पर, उस लिखित के आधार पर। पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि you are more than what you think you are. आप वो नहीं है जो आप दिख रहे हो, आप वो नहीं है जो आप हो, आप इससे कहीं बड़े हो, कहीं और ज्यादा हो, लेकिन शायद वो आपको ही नहीं पता है। आप बोलोगे ये कैसे बात करो वैसा, मेरे को नहीं पता कि मैं कौन हूँ, नहीं पता आपको। देखिए एक मजेदार बात बताता हूँ। अमेरिका से एक भाई साहब आए तो वो देखा उन्होंने एक बड़ा सा हाथी एक छोटी सी पतली सी डोरी से एक पतले से खूंटे से बंधा हुआ था, बराबर है। तो जो है उन्होंने पूछा भाई आपने इतने बड़े हाथी को बांधा हुआ है, ये तो एक जरा सा ऐसा पैर करके बी फ्री। बोला साहब आप क्या जानो, हमने इसको हैंडीकैप्ड कर दिया, मेंटली हैंडीकैप्ड कर दिया। बोला ओ इंडिया बिग मेडिसिन ग्रोथ ग्रेट। बोला कैसे किया, कोई इंजेक्शन दिया, कैप्सूल दिया, कैसे किया इसको मेंटेन किया? कहता है कि आपको क्यों नहीं समझ में आ रही? तो बड़ी सिंपल सी चीज है, जब हाथी का बच्चा छोटा सा होता है तो हम उसे बहुत मोटी चेन से, बहुत मोटे पेड़ से बांध देते हैं और बांधने के बाद में हम उसे छोड़ देते हैं और हाथी एक बार ट्राई करता, हाथी का बच्चा एक बार ट्राई करता है, 2 बार ट्राई करता है, 50 बार, 100 बार, 500 बार, 1000 बार और 3 लाख बार हाथी का बच्चा ट्राई करता है आजाद होने के लिए। और एक वक्त ऐसा आता है कि उसके दिमाग में पक्की लकीर खिंच जाती है, उसे पता लग जाता है कि अब मैं आजाद। और वो जिस दिन 3 लाख बार ट्राई करने के बाद में वो लकीर खिंच जाती है, उसके बाद में आप उसकी बड़ी जंजीर हटा करके कोई भी बांध दीजिए, बस उसे लगना चाहिए कुछ बना है, दैट्स ऑल। अब वो हल्का फीता है उसे कुछ कर। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसको बोलते हैं नेगेटिव ब्रेन वॉश। वी ऑल आर ब्रेन वॉश, वी ऑल आर ब्रेन वॉश। हमारे सबका एक एनवायरनमेंट का पास्ट है, हम उससे ब्रेन वॉश है, लेकिन वो वाली चीज के कारण में हमारा फ्यूचर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब देखिए आप उस हाथी को जाकर के यदि अभी जाकर के बोले और कि आप हाथी जी एक बार ट्राई कर लीजिए और आज मोटी चेन नहीं बनी है, पतली चेन बनी और आप आजाद हो जाएंगे, हाथी क्या बोलेगा? कब का ट्राई? क्या लगता है आपको? उसके देखना नहीं करेगा। वो क्या बोलेगा पता है? आपको नहीं पता, मुझे सब पता है, मैंने खूब ट्राई किया, 50 बार ट्राई कर चुका। आप क्या जानो मेरे कितनी बार ट्राई किया हो? आई डोंट नो। वो यही बोलेगा और वो ट्राई नहीं करेगा। आप उसके सामने माथा पटक लो, 50 बार चिल्ला लो, लेकिन वो ट्राई नहीं करेगा। और फैक्ट ये है कि आज वो सिचुएशन नहीं है जो पहले सिचुएशन थी, लेकिन वो हाथी ट्राई नहीं करता। सेम चीज है, आपके जो थॉट्स हैं वो आपको बांध देते हैं। So it is very important to take care of your thoughts. Thoughts make your character. Thank you very much. Thought makes your character. आपका एक व्यक्तित्व बन जाता है, चरित्र बन जाता है, आपकी एक पर्सनैलिटी बन जाती है और वो पर्सनैलिटी आपको आगे लाइफ में ले जाती है, because you are a product of your thoughts only. Now next is character becomes your habit. Okay? कहावत है कि आप अपने आप को नहीं बना सकते, आप अपनी आदतों को चेंज कर सकते हैं और आदतें आपको चेंज कर देगी। So you have to work on your habits, right? So this is what, watch your habits, not your। लोग टमी वेट करते हैं और मैं तो मेडिकल हॉस्पिटल में, यहाँ तो वेट की बात ज्यादा ही बातें होती है। So this is more important, right? Now how I will proceed now? I'll talk about interpersonal skills which is very much required for the hospitality and the hospital industry, right? आप लोग एक ऐसे इंस्टीट्यूट, एक ऐसे हॉस्पिटल इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ पर आपका दिन और रात, रातों दिन लोगों से इंटरेक्शन होता है। एंड दिस इज नॉट अ इजी जॉब, इट्स नॉट एन इजी जॉब टू इंटरेक्ट विद पीपल। आपको मशीनों से इंटरेक्ट करना इज इजी जॉब, आदमी वक्त की तौर वाली चीज होती है, इट्स नॉट इजी। सो मैं आपको कुछ इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में बताऊंगा। ओके, 5 चीजों के बारे में बात करूंगा, जल्दी जल्दी बढ़ूंगा आगे। ओके, कहीं पर आपको लगता है कि you need more focus, let me know, I'll go deeper. Okay, ये 5 चीजों के बाद में I'll open up the session for question and answers, right? And then I'll wrap it up. Okay, so how much time do I have, by the way?
40 minutes, perfect. So what all I am going to talk about, number 1 is responsibility, number 2 is good listening, number 3 show empathy, 4 is know any criticism or complaint, and 5th is be enthusiastic. So these are the 5 core things which you feel कि यदि ये आपके अंदर में आ गई, you कि कल आप उठ करके अपने आप को जब सुबह सुबह मिरर में देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे, ये मेरा दावा है. This is all going to shine your personality. Okay, so I'm going to talk little on every aspect. Number 1, accept responsibility. What do you mean by accept responsibility? आप एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर में जहां पर जिंदगी और मौत का सवाल होता है. आपके एक छोटा सा डिसीजन, आपका एक छोटा सा निर्णय किसी की जिंदगी बदल सकता है. बराबर है? You are doing a respectfully job. You are doing a great job. But again, you need to be backed up by the responsibility. What is your responsibility? देखिए एक स्टोरी है, स्टोरी अबाउट 4 people, 4 बंदे थे. एक का नाम था एवरीबडी, दूसरे का नाम था समबडी, तीसरे का नाम था एनीबडी और चौथे का नाम था नोबडी. नाम थे, नाम है. सो एक इंपॉर्टेंट काम किया जाना था और उस इंपॉर्टेंट काम में देखिए मजेदार बात क्या होती है. Everybody was sure that somebody would do it. सबको लगा था somebody would do it. Anybody could have done it, but nobody did it. Somebody got angry about that because it was everybody's job. Everybody thought anybody could do it, but nobody realized that everybody would not do it. It ended up that everybody blamed somebody when nobody did what anybody would have done. Okay, it's a bit confusing. I don't know आपको कितना है, but the message is very clear, right? Message is very clear. Finally, कहीं पर कुछ ऐसी चीजें होती है जहाँ पर it is a prime responsibility of the group, of the team, not as individual. यहाँ पर you have to come up with as a leadership. You have to get the job done. It is not that who is doing it, who is not doing. The purpose is to get the job done. This is number 1. बाद में बात आती है कि मेरे को करना था, आपको करना था, तुमने नहीं किया, मैंने नहीं किया. But important thing is that to be there. Now here things that accept the responsibility. You have to accept the responsibility. Being like students or like being in nursing staff and all, you are having a more prime responsibility. And let me tell you very clearly. आप जो भी कुछ कर रहे हैं, आप जो भी कुछ करेंगे, सबसे पहले किसको फायदा होने वाला है? हाँ? खुद को. ये बात लोगों को नहीं समझ में आती. लोग कहते हैं नहीं मैं काम करूंगा ज्यादा तो फिर अपोलो को फायदा नहीं हो जाएगा. अरे क्यों परेशान है अपोलो के लिए? अपोलो को फायदा हो रहा है, अपोलो को फायदा होगा. अपोलो की चिंता मत करो, आप अपनी चिंता करो. आप यदि आज आप मुझे एक बात बताइए, दुनिया के अंदर में सर्वे किया जाता है कि अच्छे एम्प्लॉयज की जरूरत है, राइट? मैं आपको लिख करके देता हूं कि आज भी अच्छे एम्प्लॉयज की जरूरत है और अच्छे एम्प्लॉयज नहीं मिलते आज भी, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी. आप मुझे एक बात बताइए, कौन आदमी ऐसा है जिसको $100 या मान लीजिए 50,000 रुपए मिलते हैं तो उसके जहन में ऐसा आता है कि मैं 50,000 रुपए की सैलरी लेकर के और 56,000 रुपए का या 60,000 रुपए का या 1 लाख रुपए का काम करूं? किसके जहन में ऐसा आता है? वंडरफुल. क्लैप क्लैप होना चाहिए. क्या मेंटालिटी, क्या मेंटालिटी? 50,000 मिल रहा है ना तो 20,000 का काम करो, 30,000 का काम करो, 4 घंटे काम करो, 2 घंटे काम करो, उसमें भी भाई क्यों? You are being paid not for what you are, you are being paid for what you will be, right? And again, आप यदि आज जितना मिल रहा है उससे डबल का काम करोगे तो अपने पॉकेट से कागज निकाल करके लिख लो, 1 साल के अंदर में आप वहां पहुंच जाओगे जिसके लिए आज आप काम कर रहे हो. आई डोंट नो यू आर गेटिंग सैलरी और यू आर गेटिंग इंक्रीमेंट और यू आर गेटिंग प्रमोशन ऑर्डर, बट 1 साल के अंदर में आपका जो ग्रोथ है उसे कोई नहीं रोक सकता. प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है, हमको जितना मिलता है हम उतना भी नहीं करते, उससे बहुत कहीं नीचे का करते हैं. Guys, why not we can do more? Because ultimately who is getting benefited? सबसे पहले मैं. So become a role model. What do you mean by role model? What do you mean by role model? Yes, रोल मॉडल मीन्स आपको पहला कदम बढ़ा करके रोल मॉडल बन के वो काम करना पड़ेगा. अभी कुछ दिनों पहले मैंने देखा था बीच के अंदर में किसी ने कुछ कचरा उचरा साफ किया था ऐसा लेकर, राइट? सैल्यूट. क्यों उन्होंने किया भैया? और क्यों किया और क्यों बताया दुनिया को?
क्यों किया, मतलब किया तो उन्होंने कई बार होगा। ऑफ द कैमरा क्या वो सफाई नहीं करते होंगे? क्या उनको कहीं पे मिलता होगा तो वो उठा करके उसको जेब में नहीं रखते होंगे और सफाई नहीं करते होंगे? लेकिन उन्होंने वो करके क्या किया? दुनिया को मैसेज दिया कि आई कैन डू इट, यू कैन डू इट। करेक्ट? सो यू हैव टू लीड बाय द एग्जांपल। आपको खुद दिखाना है, आप कौन हो क्या हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके एक्ट ऐसे होने चाहिए कि लोग उससे इंस्पायर हो। सो यू हैव टू बी अ रोल मॉडल। सेकंड, डोंट मेक assumptions, डोंट मेक assumptions, presumptions, ये कर लेगा वो कर लेगा, मैंने ऐसा सोचा उसने ऐसा सोचा। ऑलवेज बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर, परफेक्ट। कॉन्सेंट्रेट ऑन सॉल्यूशंस, डोंट प्रिपेयर प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। लोग इसमें अटक जाते हैं प्रॉब्लम्स में, प्रॉब्लम की बातें करते हैं, प्रॉब्लम क्या डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम क्या चर्चा करते हैं, प्रॉब्लम नहीं। डोंट टॉक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज ओके, प्रॉब्लम इज द पास्ट, प्रॉब्लम हो गई खत्म। बट वेयर टू मूव नेक्स्ट? सॉल्यूशन, देयर इज सॉल्यूशन, वर्क ऑन दैट। प्रॉब्लम के बारे में चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है और बहुत बादल कड़क रहा है, अभी अपन यहाँ से बाहर निकले तो क्या है सॉल्यूशन? छाता लेके निकल जाओ, टैक्सी लेके निकल जाओ, उबेर ओला चल रही है, निकल जाओ, बराबर। अभी उसके बारे में बात करो, अरे ये क्या बात है, इस वक्त बारिश होनी चाहिए थी क्या, कैसे गुजरात का मौसम समझ में नहीं आता, ये क्या बात है, वहां पे अरे व्हाट इज दिस, मतलब सो गलत। डोंट लुक फॉर द प्रॉब्लम्स, गो फॉर द सॉल्यूशन। सेकंड, बी अ गुड लिसनर। इसमें मुझे बोलना नहीं चाहिए, राइट? आई नो अपोलो पीपल आर ग्रेट, दे आर द गुड लिसनर्स, राइट? यस और नो? See, I'm telling you, this is the typical toughest job in the world. यानी मैं बाहर की सबकी बात कर रहा हूँ। देखो आप एक बात बताओ, क्यों है कठिन काम? लेकिन आप देखिए कि हमारी जो संरचना है, हमारी जो बनावट है, भगवान ने जो बनाई है बनावट, उसके बावजूद भी ये बहुत कठिन काम क्यों है? सुनना आसान काम नहीं है, और वो भी किसी दूसरे को। इट्स नॉट इजी जॉब। भगवान ने जो हमारी संरचना बनाई है उसमें हमको एक कान और दो मुंह दिए, बराबर? नहीं है? सब लोग जग रहे हैं। अरे एक सेमिनार लेने गया सब लोग बोलते तो मैं टेस्ट करता रहूंगा, बीच में ध्यान रखना, गलती से ऐसे मत कर रहे। देखो दो कान दिए हैं, अब आप कान की भी संरचना देख लीजिए। कान अपना ऑलवेज ऑन रहता है या बार बार बंद हो जाता है? ऑलवेज ऑन। और मुंह क्या होता है? उल्टा ही खुला रहता है, मुंह बंद हो जाता है। अच्छा, मुंह के अंदर में कुछ और बनावट भी है क्या? मुंह के अंदर में एक काला जिप लग जाती है, दांतों की जीभ अंदर चली जाती है, बराबर? ऐसा होता है। कान के अंदर में है कुछ दांत, जीभ नहीं। भैया भगवान भी आपको ये चाहता है कि आप बोलिए कम, सुनिए ज्यादा, लेकिन हम क्या करते हैं? आई डोंट नो, आप ही बोल रहे हो नहीं। So we are the listener, right? Listening is an art. I'll tell you, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप मुझे खुद बताइए अपने आप को लेकर के, जब आप अपने किसी बात को किसी को सुनाना चाहते हो, मतलब you want somebody to listen you, and the other person they are talking than listening, they are talking more than listening. वो बार-बार बोल रहा है, आपको सुन नहीं रहा है, and disagree at the first thing what you said. आपने जो पहला सेंटेंस बोला उसी से disagree, अरे नहीं क्या बोल रहे हैं? नहीं people are like that. आपको कैसा लगेगा? सोचिए, बोलेगा मत। Interrupted you at every step and come to conclusion unrelated to facts. यानी आपकी बात में बीच में बार-बार आपको, आपका सेंटेंस पूरा खत्म ही नहीं हो रहा, कॉमा भी नहीं लगाया आपने, और वो बीच में आपको टोक रहा है, बार-बार आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा है। Impatient and complete every sentence you started. सामने वाला आपकी बात को खत्म करने के लिए इतना impatient है और आपकी बात को बार-बार कंक्लूड करना चाहता है। हाँ ठीक है, समझ गया, आप क्या बोलते हैं तो हाँ, अरे हाँ तो मतलब क्या है? मैं बता दूं वो क्या करूँ? बट उनका मतलब ये होता हाँ मतलब shut up, खलास, I understood everything. So क्या ऐसा होता है आपके साथ? Physically present but mentally absent, not paying attention. Physically तो बैठे हुए हैं, आपको समझ में भी आ रहा है कि इसके अंदर में घुस रही नहीं बात, लेकिन वो बैठे हाँ, आप उससे आपका नाम क्या है? हाँ सही बोल रहे हो आप। अरे भाई साहब क्वेश्चन पूछा मैंने, तब उसको समझा हाँ। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैठे हुए हैं, ओके, you have to repeat the same thing in 3 times because he is listening but not he is not listening, he is just hearing. कई बार होता है आपको बार-बार वो रिपीट करना पड़ता है, बट आप सोच के देखिए क्या आप वो व्यक्ति तो नहीं हो जो सामने वाले को पेशेंटली सुनते नहीं हो। सी कैसे सुनना है? सुनना भी एक कला,
सुनने के लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे। Encourage the speaker to talk by asking questions। आप मुझे किसी चीज के बारे में बता रहे हैं और यदि मैं आप अच्छा लिसनर बनना चाहता हूं तो मैं उसी से रिलेटेड आपसे 2-3 चीज और पूछ लूंगा। अच्छा और इसके बारे में हो अच्छा। So I'm encouraging you to talk more। बराबर? So this is number one thing, you can be a good listener। Number two, don't interrupt and change the topic। Do not interrupt, let him finish, let him talk, let him finish everything, silent, and then you should be starting, right? Next, pay full attention and avoid distractions। No mobile, no phone, no message, no WhatsApp। सामने वाले के सामने आप बैठ करके ये कर रहे हो, so what impression you are giving, correct? अभी एक मैंने इंटरव्यू देखा था, शायद आप लोगों ने देखा होगा, मोदी साहब का इंटरव्यू था कुछ टाइम पहले का। तो एक उनसे किसी ने पूछा था कि आप घड़ी को ऐसा करके क्यों मानते हैं, ऐसा करके क्यों नहीं? सुना था, देखा था किसी ने? बताओ उनको क्या जवाब दिया था? Very good. Can we clap for this? Bhanumati? Okay. Very good. Can we clap? So, बात समझ में आई? अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मुझे बात कर रहे हैं, मैं बार-बार ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ। क्या मतलब है? I am telling you, shut up. I have another point. I want to go. Silently I am saying like that. शायद आपको इसका ब्रेक नहीं होता, लेकिन ये चीज आप मैसेज दे रहे हो। Small things, but it is giving a very bad impression. And believe me, जो आदमी एक बार यहाँ पर अपोलो में आया, उसने स्टेप इन किया, तो उसका साथ में एक ऐसा रिलेशनशिप हो जाना चाहिए कि वो कभी भी दूसरे कहीं के बारे में सोचे भी ना, because you have given full attention, full caring, and हॉस्पिटल इंडस्ट्री कैसी होती है कि जहाँ पर आदमी इच्छा से आकर के खुद आकर के बोलता है कि जी I am sick, please treat me, बराबर? खुद ही आकर के वो बोलता है ना। So you are the person who are, और मुझे नहीं पता, ये बात आपको पता ही नहीं पता, बट आदमी की 90% से ज्यादा प्रॉब्लम तो वो सुनने में ही खत्म हो जाती है। If you listen and carefully, क्योंकि आज की डेट में कोई किसी को सुनना ही नहीं चाहता। मियाँ बीवी को, मियाँ बीवी मियाँ को, हस्बैंड वाइफ को नहीं सुनना चाहते, बच्चे पापा मम्मी को नहीं, पापा मम्मी बच्चों को नहीं, बराबर है? घर की कहानी ऐसे ही है, कोई किसी को नहीं सुनना चाहता जी। और वो जब आदमी आकर के अपोलो में आता है और कहता है आप इसको सुन लेते हो, तो इतना खुश हो जाता है, कहता है वाह मेरी बीवी नहीं सुनती लेकिन मेरे डॉक्टर ने सुनी, मेरे घर पे मेरे सास ससुर नहीं सुनते, उन्होंने मेरे को सुन लिया। सुनो, सुनने में कुछ प्रॉब्लम है? If you are a good listener, I am telling you, you will be more magnetic personal. You will become a more magnetic personality in your own life. I am not talking about this प्रोफेशनल इंडस्ट्री। आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। कभी ज्यादा सुना देते हैं पेशेंट्स। वल्लाह वेरी ट्रू। कुछ लोग आते हैं जो उनका वो सेंटेंस नहीं होता, वो बुक होती है, 1-2 पैराग्राफ में नहीं बोलते जाते, ओके आई गॉट योर मैसेज, फिर आपको बोलना पड़ता है। See again, it is something like common sense. We have to see that where to stop, where not to stop, where to interrupt or where not to interrupt. But again, thing is that the person should get the message. आपके बॉडी लैंग्वेज से उसको मैसेज जाना चाहिए कि आप उसे अनडिवाइडेड फुल अटेंशन दे रहे हो, बस। दिस इज व्हाट, बराबर? सो दिस इज द मैसेज। नाउ लिसन टू द फीलिंग्स, नॉट जस्ट वर्ड्स। शो एम्पैथी, पे फुल अटेंशन। आप उसके वर्ड्स पे मत जाइए। कई लोग बेचारे नहीं बोल पाते, मुझे नहीं पता आपके यहाँ पे कैसे लोग आते हैं, दिखाती रहती है, कुछ पता नहीं पाते, तो फीलिंग्स को समझिए। यानी ओके कुछ नहीं बोल पा रहे, बोल रहे आप उसे समझ सकते, तो वो और ज़्यादा आपसे बाय हार्ट कनेक्ट होगा। ओके, एंड नाउ व्हाट इज एम्पैथी? द नेक्स्ट स्लाइड इज रिगार्डिंग दैट। व्हाट इज एम्पैथी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पैथी एंड सिंपैथी? कौन बताएगा ये? सुना आपने सिंपैथी एम्पैथी? बताओ फिर। अच्छा मैं एक कहानी से बताऊँ, बहुत सारी कहानी है मेरे को। सिंपैथी एम्पैथी पे एक कहानी बताता हूँ। एक छोटा सा बच्चा था, एक मतलब शॉप पे गया, शॉप पे जाकर के बोलता है कि मुझे पपी खरीदना है, कुत्ते का बच्चा होगा मतलब वो खरीदना है मेरे को। तो शॉपकीपर कहता है ओके आप ये ले लीजिए, 1, 2, 3 चॉइस है आपके पास, और $50 कहता है ओके। फिर वो उसकी नजर जाती है, ओ वो वाला जो पपी है वो कितने का है? कहता है नहीं वो हम सेल के लिए नहीं है, वो ऐसे ही रखा हुआ है, आप इन तीनों में से चूज करिए। तो वो बच्चा फिर भी कहता है आई वांट टू सी दैट, आई वांट टू चेक।
चेक करने के लिए जाता है तो वो देखता है वो पप्पी जो था वो उसका एक पैर नहीं था, उस पपी का एक पैर नहीं था, वो 3 पैर का पपी था। तो बच्चा बोलता है मुझे यही वाला चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। तो वो कहता है नहीं मैंने आपको बोल दिया, वो गुस्से में बोलता है मैंने आपको बोल दिया कि जब वो नहीं है तो नहीं है। आप उसके पीछे गए तो आपको देखा, बोला ठीक है आप देख लिए, लेकिन मैं मना कर रहा हूँ उसे नहीं। फिर भी वो इंसिस्ट करता है मुझे यही वाला चाहिए। तो वो कहता है ओके यानी आपको चाहिए तो ले जाओ, बट आप क्यों लेना चाह रहे हो जब आपको अच्छा पपी मिल रहा है ट्रैकर वाला। कहता है मुझे ये चाहिए। एनीवेज वो उसके पास में पैसे कम थे, वो घर जाकर के बाकी पैसे लेके आया और वो लेकर के जाने लगा। जब जाने लगा तो वो दुकानदार को रहा नहीं है, कहता बेटा मैं समझ नहीं पाया तुमने क्यों दिया बेटा, तुम्हारे को अच्छे पपी मिल रहे थे, देखो दौड़ेंगे खेलेंगे ये थोड़ा सा परेशान होगा। तो उस बच्चे ने अपना पैंट उठा करके और उसे अपना पैर दिखाया और उस पैंट उस लेग में उसके ब्रेस बंधी हुई थी, यानी उस बच्चे का भी एक पैर। दिस इज कॉल्ड एम्पैथी, नॉट सिंपैथी, एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है आई फील व्हाट यू फील, और सिंपैथी का मतलब होता है आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील। मैं आपको समझ सकता हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं फील नहीं कर सकता क्योंकि मुझे वो चीज नहीं है। तो फीलिंग और सेम समझने के लिए जब आती है बात तो वो उसको बोलते हैं एम्पैथी। सो एम्पैथी का क्या होता है कि एम्पैथी इज एक्सपीरियंसिंग द फीलिंग ऑफ अनदर, इट्स लाइक अ फीलिंग ऑफ द पर्सन एंड देयर इट इज अंडरस्टैंडिंग द सफरिंग ऑफ अनदर पर्सन। तो उसे वो चीज की व्यथा पता थी, इसलिए उसने वही पपी चूज किया। Now you acknowledge another circumstances and you have a similar personal experience, empathy। It is the sympathy से भी next चीज है जो empathy है। empathy जब आप शो करते हैं तो it is like a feeling by heart, it's not like feeling like by mind। आपके दिमाग से नहीं, आप दिल से उसके कनेक्ट हो जाते हैं। You do not recognize but you get emotional, that is by heart। So be sympathize, be empathize, not be sympathize। Now how you can do that? Just a simple thing, not only listen but open up with others। You have to open up with the guy जो भी है, सिर्फ आप उसे सुन रहे हैं कर रहे हैं छोटे, but you know आप तो छोड़िए, मैं कई बार एम्पैथाइज हो जाता हूँ, कई लोगों से बात करता हूँ तो I feel so close to their problems। तो it happens with that। तो आप अपने प्रोफेशन से निकल करके, आप अपनी वो पोजीशन से निकल करके जब आप बाहर निकल के एज ए ह्यूमन उसको बात करते हो, समझते हो और उसको एम्पैथाइज करते हो तो वो एक अलग फीलिंग होती है। बट यू बिकम इन अ प्रोफेशन, यू थिंक just patient, just person, just customer, just client, that is something different। but you move 1 mile, next mile and you talk in those sense, then it is something different, right? So that is called empathy। now offer physical and affection and help, withhold quick judgments by someone's opinion। somebody किसी ने बोल दिया कि वो ऐसा है, उनके client ऐसे हैं, वो customer ऐसा है, don't go with that one, go and feel by yourself। आप जो फील करते हैं वो सही है, किसी ने किसी के बारे में जो बोला है I don't care for it, as simple as that। treat people as being important, feel everyone as an important, right? whomsoever, whatsoever, whatsoever background and whatsoever education or financial background। so clear? next is no criticism, no complaint। आपके प्रोफेशन के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा important है, not to be criticized, not to be complained। now बहुत बार ऐसे मौके आते हैं, आपका सबॉर्डिनेट, आपका टीम मेंबर, आपका क्लाइंट, आपका पेशेंट या आपका सपोर्ट, आपके टीम मेंबर में आपको क्रिटिसाइज करना पड़ता है, आपको करना पड़ेगा, आपको उसे सुधारना पड़ेगा, आपको उसे चेंज करना पड़ेगा। हाउ यू विल डू दैट? इट इज नॉट इजी थिंग। नंबर 1 थिंग इज दैट क्रिटिसाइज विद अ हेल्पफुल एटीट्यूड। यदि आप उसे सबसे पहले तो इसमें शायद लिखा नहीं है, यू हैव टू क्रिटिसाइज विद अ सैंडविच अप्रोच। सैंडविच अप्रोच क्या होती है? आप उसे बुलाइए, आइए, बधाइए, उसके बारे में 2 पहले तारीफ करिए, यू डूइंग ग्रेट जॉब, आपने कल वो जो शाम को काम किया था, आप 2 घंटा रुके थे, एप्रिशिएट, वेरी गुड जॉब डन, ग्रेट, आप सबसे अच्छा कर रहे हो। उसके बाद में आप उसकी क्लास लेना शुरू कर दीजिए। ओके, सो दैट इज द वे you start with good note and then you talk about the problem। now you behave like a coach, not like a manager। कि कोच क्या करता है? कोच क्या करता है? आपको मैनेजर नहीं, मैनेजर और कोच में बहुत फर्क होता है। कोच क्या करता है? आपको आपके साथ जाया करके और आपको ठीक करता है और आपको हेल्प करता जाता है, और उसका गोल क्या होता है? आपको कुछ बनाना, आपको ओलंपिक खेलवाना, आपको
ऊपर तक ले जाना, तो आपको ऐसे कोच काम करना सो दैट द पर्सन डोंट गेट डिफेंसिव। जब आप इस तरीके से करते हो तो सामने कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी डिफेंसिव नहीं होता, वो आपके सपोर्ट में आ जाता है। ही नो कि सर मेरी हेल्प करने आया, तो ही विल ओपन अप, सारे अपने कान खोल देगा और आपकी बात अच्छे से ढंग से रिसीव करेगा। नाउ यू हैव टू नंबर 1 चीज, ऑलवेज और नेवर वाली चीज कभी आपको नहीं बोलनी। तुम तो हमेशा ही लेट आते हो, ऐसा नहीं, तुम तो कभी ये करते ही नहीं हो। ये डोंट बी स्पेसिफिक। कल आप 3 घंटा लेट आए थे, ऐसा बोलिए। ये मत बोलिए आप हमेशा ही लेट आते हो, तो वो अपना जस्टिफिकेशन देगा, नहीं हमेशा कब लेट आता हूं मैं, तो उठा के देखो मार के बैठो। You know, don't start with that one. Be specific directly. कल आप 3 घंटा लेट आए, talk about that. Because when criticism causes resentment, maintain your cool but be firm and give the person an opportunity to explain his side. आप सामने को मौका दीजिए उसको एक्सप्लेन करने का। ये नहीं कि आपने बोला मेरे को 15 मिनट छोड़ना है, आपने उसको बुलाया, बिठाला, बोला चल पूरा मेरा पास, ऐसा नहीं। Say listen, maybe the real thing. 3 घंटा कल लेट आया, पता नहीं उसके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं किस परिस्थिति से जा रहा है, पता नहीं एक ऐसी चीज है जिसके लिए शायद उसको छुट्टी लेनी थी और वो फिर भी 3 घंटे बाद आ गया, 3 घंटे लेट आ गया, करेक्ट? माने कुछ भी हो सकता है। Listen please. So you have to understand of that. Now criticize the performance, not the performer. आप उसकी परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज कीजिए, पर उसको नहीं क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसको प्राइवेट में करिए। मुझे आपसे शिकायत है तो मैं आपको अंदर कमरे में ले जाऊंगा, गेट बंद करूंगा और फिर आपके साथ में बात करूंगा। और यदि मुझे आपको प्रेज करना है, आपको शाबाशी देनी है, तो कान में और कमरे में बंद ले जाके नहीं करूंगा, आपको सबके सामने बोलूंगा ही डिड अ ग्रेट जॉब, कल इन्होंने ऐसा किया, इससे अपोलो को फायदा हुआ, हमारी कंपनी को फायदा हुआ, हमारे यूनिट को फायदा हुआ, हमारे को ये बेनिफिट हुआ। तो प्रेज कहाँ पर करनी है आपको, और क्रिटिसाइज कंप्लेंट कहाँ करना है, बंद करना है, राइट? एज सिंपल। ऑफर सॉल्यूशन, उसको सॉल्यूशन दीजिए कि ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, सो ऑफर सम सॉल्यूशन, गिव हिम समथिंग टू सो दैट ही कैन कम अप विद दैट सिचुएशन। सो दैट इज एज सिंपल एज दैट। ओपन एंड क्लोज विद द पॉजिटिव। एंड फाइनली जब सब कुछ हो जाए, आपने थप्पड़ मार दिए उसको, बढ़िया अपना डायलॉग सुना दिया, सब कुछ कर दिया, लास्ट में जाके आपको क्या बोलना है, आपको दोबारा से प्रेज करना है। कैसे प्रेज करना है? आई नो यू आर द गुड एसेट टू द कंपनी, आई नो यू आर डूइंग वर्किंग वेरी हार्ड, सबसे हार्ड वर्किंग आप ही हो, आपके जैसा कोई नहीं है हमारे पूरी यूनिट। उसको लास्ट में भी प्रेस करना है। तो दैट इज कॉल्ड सैंडविच अप्रोच। बुला के उसको बीच में झाड़ दो, लेकिन ऊपर नीचे बराबर। ऐसे नहीं, इसको प्रैक्टिस करने के लिए वैसे सबको ही बता दिया, तो कल किसी के साथ होगा तो फिर अच्छा अब ऐसा हुआ कि किसी ने किसी की प्रेज करी तो उसको लगेगा इसके थप्पड़ी पड़ने वाला। ओके, नाउ ये तो बात हो गई कि आपको किसको क्रिटिसाइज करना है। नाउ इफ यू आर बीइंग क्रिटिसाइज्ड, आप एज रेसिपिएंट और आपको क्रिटिसाइज रिसीव करना है, तो आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? टेक इट राइट स्पीड एंड एक्सेप्ट इट ग्रेशियसली। बड़े लोग सॉरी बोलने में शर्म नहीं करते, बराबर? सॉरी बोलना वैसे इतना आसान काम भी नहीं है, but all big people, all successful people accept it graciously. Yes, I'm sorry, I did it. Okay, no problem. So take that responsibility. As a leader, you have to say, yes, ये मेरी गलती से हुआ है, I'll take care. और अपने ग्रुप में कोई अच्छा काम हुआ है तो you should not say कि नहीं मैंने किया, I'm the person मैंने किया। जब अच्छा होता है तो पूरी टीम ने किया है, और कहीं पे कोई गलती हुई है तो किसने करी है? जबकि लोग उल्टा करते हैं। So don't do that. Okay. Now be thankful for receiving the positive criticism. आपने मुझे कोई चीज बताई कि विनोद आपने ये चीज ऐसा नहीं किया, इस सेमिनार में ऐसा नहीं किया, what I would say, thank you very much. Next में मैं ये चीज सुना के करूँगा. I should be thankful or not? Yes. I need your feedback. How will I improve? I am here. आप वहाँ पर हैं, आप ही तो मुझे देख पा रहे हैं, तो आप मुझे 2 चीज बताएंगे तो मुझे आपका thankful होना चाहिए. Now positive persons becomes better and not the bitter. Attend हो जाते हैं. If you don't want criticism, हाँ कुछ लोग कहते हैं हमको criticism अच्छा नहीं लगता. Okay, आपके लिए भी है तरीका. If you don't want criticism, do nothing, say nothing, and be nothing. You will never get it. जब आप कुछ बोलोगे तभी तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे, बोलो ना. समझ में आई बात? Do nothing, कुछ मत करिए, कुछ मत करिए. आपको कोई भाई जो आदमी काम करेगा उसे criticism भी मिलेगा. If you are doing nothing, I'm sure you will never get criticism.
but you have to be ready for criticism and positive criticism, because those all things will improve you. Is that correct? Perfect. So the last thing is called enthusiastic. What do you mean by enthusiastic? So before I take it forward, may I request all of you to stand up? All of you, please stand up. आप लोग भी. आप लोग please sit down. Okay, and can you say that I am the best? I am the best. ऐसे बोलोगे? हाथ ऐसा हो गए. I am the best. I am the best. I am enthusiastic. I am enthusiastic. I can do it. I can do it. I will do it. I will do it. I am the best. 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 बैठिए, पधारिए. You feel जोश? You feel जोश? Without enthusiastic, nothing happens. Nothing happens. बराबर? मुझे किसी ने बोला कि हम और आप भी नहीं होते यदि enthusiasm नहीं होता तो, excitement नहीं होता तो, बराबर है? So without that nothing happens. You have to be enthusiastic. Now how do you feel? How do you see if the person has got enthusiasm or not? आप सामने वाले में कैसे देखते हैं कि इसमें कुछ है कि नहीं? देखिए, किसी ने कहावत बोली थी कि ना लोग मरते तो 90 साल में 80 साल में हैं, लेकिन वो जीना बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, बराबर? ऐसा कुछ. तो देखिए, सामने वाला आदमी सिर्फ जी रहा है या उसमें कुछ जान है, वो कैसे पता लगेगा आपको? हाउ डू यू फील कि ये सामने वाला बड़ा एक्साइटमेंट एंथुसियास्टिक आदमी का, आप बोलते हो ना कई बार, तो कैसे पता लगता है आपको? एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज, व्हाट एल्स? एक्टिविटी. हाँ, चलने का स्पीड से. वेरी गुड. बिल्कुल. आप देखिए सक्सेसफुल लोगों की जो वॉकिंग स्पीड होती है, दैट इज 25% फास्टर. 25. यस, इट इज ट्रू. सेकेंडली, जब आप उनसे हाथ मिलाते हो तो ऐसा लगता है कि बिजली गिरती है. इतना स्ट्रॉन्ग पकड़ होती है, और वहीं से हाथ से आपको सेकंड से समझ में आ जाता है कि यस, दिस पर्सन इज हैविंग सम ड्रीम, सम गोल, सम मिशन, ही इज लाइव. ये जिंदा आदमी है, बराबर है? तो जब आप सामने वाले को ऐसा चाहते हो, तो क्या आप ऐसा बन सकते हो? You have to transfer that energy. You have to show somebody, yes, you are meeting a great person today. आपकी मुलाकात आप एक बहुत अच्छे आदमी से हुई है. Can you do that? So you have to be enthusiastic. Now enthusiasm and success go hand to hand. आप without enthusiasm आपकी लाइफ में सक्सेसफुल मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नेगेटिव चीजें बोलता ही, आप ही ने बोला नहीं. But it goes hand to hand, right? You have to be enthusiastic to be successful. They are passionate about life, work, knowledge, everything. सब चीजों के लिए passionate होते हैं. Passionate for doing everything. कोई भी नई चीज आती है, they are very excited, very passionate about it. Any project, any goal, any new activity, and they are happy that they will learn a lot. नई चीज सीखेंगे. They are passionate about it. Now they do everything with a good attitude and good energy. Positive, अच्छे attitude के साथ में और अच्छे energy के साथ करते हैं. They get satisfaction from what they do because they are enjoying doing the things. Do the things you love to do, and love the things what you are doing. Correct? सुना आपने? जो करते हो उससे प्यार करना शुरू कर दो, और नहीं तो जो प्यार करते हो वो करना शुरू कर दो, बराबर? So you should be doing passionately, बराबर है? यदि आप जो कर रहे हो उसे जॉब की तरह कर रहे हो, नौकरी की तरह कर रहे हो, तो बिलीव मी आपका बहुत बढ़िया सुनहरा भविष्य नहीं होने वाला. मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये बात सच है. देखिए, एक बार क्या होता है कि एक आदमी बिल्डिंग बन रही थी, तो वहां पर जाते हैं और लोग बिल्डिंग बना रहे थे, तो उससे पूछते, भाई साहब क्या कर रहे हो? तो कहता, इतना नहीं है क्या? ये ढूंढ रहा हूँ, तो भाई साहब करेक्ट हो, सही नहीं ढूंढ रहा हूँ. सामने दूसरे वाले से पूछा करके उसको, भाई साहब क्या कर रहे हो? बोले जी पेट पूजा कर रहा हूँ. काफी पेट का सवाल है, और रोजंदारी कर रहा हूँ, और क्या है? और फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो बढ़िया बात है. वो कहता है अच्छा. और तीसरे वाले आदमी से जाकर के उसने, वो कहता है कि मैं एक ऐसा महल, एक ऐसा मंदिर बना रहा हूँ जिसके अंदर में एक राजा और एक रानी आकर के रहने वाले हैं, उसका निर्माण कर रहा हूँ. उसको सी दैट एटीट्यूड. तीनों वही काम कर रहे थे, अलग अलग काम नहीं कर रहे थे, तीनों ही मिट्टी ढो रहे, तीनों ही ईंट ढोए थे, लेकिन एटीट्यूड किसका था? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग.
You are doing a respectable job. Respectable job. Believe me, लोगों का ड्रीम होता है कि हम किसी के काम आ जाएं, हम किसी की सेवा कर दें, और आप by chance, I should not say by chance, by choice, you are in this industry. You are helping people, lakhs and crores of people. Correct or not? मैं गलत बोल रहा हूँ? आपको ये मौका मिला है कि आप किसी के काम आ रहे हैं, और बढ़िया बात है कि काम आ भी रहे हो और सैलरी भी मिल रही है, बराबर है? आप सेवा भी कर रहे हो, किसी की हेल्प भी कर रहे हो, किसी के मदद का कारण भी बन रहे हो, और आपको पैसा भी मिल रहा है, सैलरी भी मिल रही है. दिस इज द मोस्ट रेस्पेक्टफुल जॉब. आर यू रियली हैविंग अ ग्रेटिट्यूड फॉर योर जॉब? क्या आप उसके लिए बड़े खुश हैं? You should be. So you should praise yourself कि I'm into the great job industry. Now this is called entrepreneur. Now they are responsible. They focus on their talent and everything that they like to follow their dreams. They distance themselves from the toxic environment. What do you mean by toxic environment? Negative environment. Okay? You have to keep away yourself. So जैसे अभी मैं नीचे से आया तो मुझे किसी ने मास्क दे दिया ला करके. Why mask? Negative environment से दूर रहने, बराबर? So you have to keep away from the negative environment. They feel enthusiastic all the time. They make decisions. They are creative. Successful people take quick decisions. They make fast decisions. कुछ लोग को एक डिसीजन लेने में साल लग जाते हैं, सालों. छोटे-छोटे घर के डिसीजन नहीं ले पाते. You have to be a decision making personality. Then you have to have faith themselves. अपने अंदर faith होता है जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं सही कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कर रहा हूँ. And if I am doing this, I will be stick on to the same decisions. They work hard and they get what they want. Right? So with this, my interpersonal skills जो 5 चीजें थी वो खत्म हो गई. लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैंने किन 5 चीजों के बारे में बात की. Responsibility, good listener, what else? Enthusiastic 5 था और empathy, sympathy और no criticism, no complaint, and be enthusiastic. बस ये 5 चीज अपनी जिंदगी में ले आइए, आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी. मुझे नहीं पता आपके अंदर में क्या चीज नहीं है और क्या चीज है, क्या चीज ज्यादा है, क्या चीज कम है, but at least there is a gray area, there is something where you can fill it. Correct? So can we move to the next? Yes. So the next is everything. What is everything? Attitude. What is attitude? Very good. Attitude का मतलब क्या होता है? What do you think that what is attitude? इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? नजरिया. बराबर? नजरिया. What do you think? What is नजरिया? Mindset. 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 Yes. What else? आप लोग अब बैठ सकते हैं. कई लोग तो जब से ही खड़े हुए अभी तक. बैठिए आप. Okay. What else do you think? नजरिए का क्या मतलब हो सकता है? Approach to the situation. Approach To situation. to the situation. Okay, good, great. Or what else? Students. Okay, I'll tell you. एक कहानी से बताता हूँ, आपको समझ में आएगी बात अच्छे से. देखिए, नजरिया मतलब कि आप चीजों को कैसे देखते हैं. वही चीज को, वही सिचुएशन को एक सक्सेसफुल आदमी अलग तरीके से देखता है और एक अनसक्सेसफुल आदमी अलग. सिचुएशन वही है. एक कहावत भी है कि दुनिया वैसी नहीं दिखती जैसी दुनिया है, दुनिया वैसी दिखती है जैसे हम हैं, जैसे हम हैं. नहीं, हमारे पे काला चश्मा लगा तो हमको दुनिया कैसी लगेगी? लाल तो, पीला तो, आगे नहीं पूछूंगा. सो इसका मतलब है कि हमारे चश्मे में प्रॉब्लम है, लोगों में प्रॉब्लम नहीं है. वही दुनिया किसी के लिए हरी भरी और बढ़िया और बहुत संगीन और सब अच्छी है, और वही दुनिया किसी के लिए बेकार है. तो वो कहाँ प्रॉब्लम है? हमारे अंदर. एक बच्चा एक मेले में जाकर के एक अंकल से पूछता है, अंकल ये जो लाल कलर का गुब्बारा है, बैलून, इसको आप छोड़ोगे तो क्या होगा? उसमें गैस भरी थी, नियॉन गैस. ओके, कहता है काले रंग का छोड़ोगे तो क्या होगा? बोले बेटा काला वाला भी ऊपर चला जाएगा, और ये जो पीला वाला है, छोटा वाला, इसको बोले बेटा. तो उसको समझ में आता है कि बच्चा क्या जानना चाहता है. वो बैठता है, वो कहता है बेटा ये कलर की वजह से नहीं जा रहा ऊपर, न शेप की वजह से जा रहा है ऊपर, इसके अंदर जो गैस भरी पड़ी है वो इसे ऊपर ले जाए. तो आपके अंदर कौन सी गैस भरी पड़ी है भाई? पॉजिटिव एटीट्यूड. बराबर? पॉजिटिव एटीट्यूड. अब देखिए, कुछ लोग होते हैं अच्छी सिचुएशन में भी प्रॉब्लम ढूंढते रहते हैं, और कुछ लोग निगेटिव सिचुएशन में भी खुश रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं या अच्छी चीज ढूंढ लेते हैं.
रामलाल और श्यामलाल, दो दोस्त, ओके। रामलाल पॉजिटिव में, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज एक्साइटेड। श्यामलाल, आपको कैसे पता ऑलवेज नेगेटिव? नहीं, सही बोल रहे हैं। ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज दुखी, हमेशा ही परेशान। सुबह सुबह श्यामलाल रो रहे थे, एक आदमी निकला, कहता भाई साहब क्यों रो रहे हो? बोले जी लुट गया, पिट गया, बर्बाद हो गया सब कुछ। बोले क्या हुआ? बोले जी 1 लाख रुपए का घाटा हो। तो भाई 1 लाख रुपए का घाटा होना तो यू नो इट्स समथिंग रियली सीरियस। तो आदमी बैठ जाता है, आई एम सो सॉरी टू हियर अबाउट इट कि 1 लाख रुपए का घाटा हुआ है, बट आई वांट टू नो कि कैसे हुआ घाटा, क्या हुआ था? आपने चोरी वोरी तो नहीं हुई आपके घर में? बोले नहीं, मेरे घर में कोई चोरी नहीं, ऐसा पैसे रखता भी नहीं है, कोई चोरी नहीं। फिर क्या हुआ? शेयर मार्केट खेलते हो उसमें कुछ लॉस हुआ? बोले नहीं, उसमें भी नहीं हुआ। बोले फिर क्या हुआ? बोले कल मेरी लॉटरी का इनाम निकल गया। अरे आपने बोला लॉस हो गया, तो इनाम निकल गया? बोले नहीं जी, वो मतलब मैं 1 नंबर से जो है 5 लाख की लॉटरी, मेरा देखिए 4 लाख का इनाम निकल गया, लेकिन 1 नंबर से 5 लाख वाली रह गई, तो उसके लिए मुझे गुड रीजन, बड़ा परेशान होता है। ओके रोते रहो, मतलब बैठे रहो, चला जाता है। अगली उस पे जाता है, अगले रामलाल के पास में जाता है। रामलाल बड़ा खुश था, एक्साइटेड था, मोटिवेटेड था, कहता है यस आज ही सुबह मेरे को 50,000 रुपए का फायदा होगा। बोले तू भी लॉटरी खरीदता है इसका मतलब? बोले नहीं मैं तो लॉटरी नहीं, तो शेयर मार्केट? बोले नहीं। बोले कल मेरी ना जेब कट गई थी। तो बोले जेब कट गई तो तेरा फायदा हो गया? बोले भैया रोज मैं 1 लाख रुपए पॉकेट में रख के घूमता था और मेरी वाइफ रोज गुस्सा होती थी। उन्होंने बोला जी 50,000 लेके जाया करो, 1 लाख मत लेके जाया करो। और कल ही मैंने 50,000 घर पे छोड़े थे, वो बच गए। उसकी 50,000 रुपए की जेब कट गई, फिर भी वो जो बच गए उसको देख के खुश है। उसकी 4 लाख की लॉटरी निकल गई, लेकिन एक की नहीं निकली, उसके लिए दुखी। भैया दुखी होने के बहुत कारण है दुनिया में, और सुखी होने के लिए, खुश होने के भी बहुत कारण। यू शुड नो कि हाउ टू गेट द पॉजिटिव इन एवरीथिंग। Attitude, not attitude, will determine your attitude. Think positive. Life is 10% what that happens and 90% how do you react. Situation तो सबके पास सेम आती है, लेकिन उसको रिएक्ट कैसे करते हो वो आपको महान बनाता है। सिचुएशन महान नहीं बनाती। देखिए आपने कहावत सुनी भी होगी, आपको पता भी होगी, पत्ते आपके पास अच्छे आते हैं नहीं आते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे आप लाइफ नहीं जीतते, लेकिन आप उससे खेलते कैसे हो उससे जीतते। बराबर? यदि ऐसा होता तो इस दुनिया के अंदर में हर साल नए बिल गेट्स पैदा हो गए। वो बिल गेट्स हो गए, वो जी गरीब हो गए, वो दूसरे बन गए, अंबानी जी नीचे चले गए, फलानी जी ऊपर आ गए, फलानी जी हो गए, फिर वो रामलाल ऊपर चला गया। ऐसा नहीं होता। वो एक आदमी को पत्ते नहीं, उसको गेम खेलना आता है। तो पत्ते तो आपके पास भी खराब आ रहे हैं, पत्ते उसके पास भी खराब आ रहे हैं, लेकिन उसको गेम खेलना आता है। तो आपको गेम खेलना सीखना है, पत्ते की परवाह नहीं करनी है। सिचुएशंस तो सबके पास आएगी, आप लिख के रख लो, प्रॉब्लम्स, कठिनाइयां, फेलियर्स आपकी लाइफ में जरूर आएंगी। मैं यहाँ पर मीठी बात बोलने नहीं आएगी कि बहुत अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, नहीं होगा। आपके साथ भी बहुत चैलेंजेस आएंगे, मेरे साथ भी बहुत चैलेंजेस आएंगे। इट्स नॉट इजी, लाइफ इज नॉट इजी, बट यू हैव टू बी मोर टफ देन द लाइफ। करेक्ट? सो एज सिंपल एज दैट, लाइफ इज नॉट द रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, पेन्स का फुल फॉर्म पॉजिटिव एटीट्यूड इन नेगेटिव सिचुएशन। Greatest discovery, you can change your future. And then maybe you know that if you take that A equals to 1, B equals to 2 and you go like that, तो आप देखेंगे कि लक को ऐड करके देखेंगे, it doesn't come 100%, it comes as 47%. Now हार्ड वर्क आप देखोगे कि जी बहुत मेहनत करता हूँ और मैं उसी से सक्सेसफुल हो जाऊँ, I'm sorry नहीं होता, हार्ड वर्क से नहीं होता। हार्ड वर्क से होता तो पुली और रिक्शा पुलर they are doing more hard work, right? They would have been, but not. नॉलेज वाले बहुत लोग बैठे हुए बाहर दुनिया में, बहुत है नॉलेज वाले लोग, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं है। व्हाट यू नीड? एटीट्यूड। मनी पैसे से भी नहीं होता। कई लोग हैं जिनके पास 10, 25, 50, 200 करोड़ पड़े हुए, लेकिन वो भी बहुत सक्सेसफुल नहीं है। व्हाट डू यू नीड? एटीट्यूड। देयर आर लीडरशिप स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड ही बेकार है, नहीं होता। लीडरशिप स्किल्स के साथ में आपको एटीट्यूड चाहिए। स्किल्स, लव डज नॉट मैटर, एटीट्यूड इज द ओनली थिंग। यू शुड हैव अ पॉजिटिव एंड गुड एटीट्यूड। इफ यू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, आपके सामने कोई भी समस्या आती है, आपका बॉस आकर के बोलता है, आपका कोऑर्डिनेटर आकर के बोलता है, आपका असिस्टेंट आकर के बोलता है, पेशेंट आकर के बोलता है, और आप बोलते हो कोई बात नहीं जी मैं देखूंगा। दिस इज कॉल्ड गुड एटीट्यूड। और कोई भी छोटी सी समस्या आती है, उसमें आप बोलते हो ओह माय गॉड, व्हाट इज ओह माय गॉड,
आप उसके सामने इतना प्रॉब्लम दिखा देते हो तो वो तो वैसे होगा। This is called attitude, right? So you have to be a positive attitude and transformer. You have to transform the positive energy to the people. So is that clear? Now, so here I finish the things what I wanted to talk. Before I go to the next slide, I would like to open up for the question answer session. Right? So I hope कि these things would be working for you. I don't know, but आप जो चाहें इसमें से लेकर के जा सकते हैं. Okay? So now floor is open up for the question answer. आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे. कृपया करके आप पूछ सकते हैं. आपका एक प्रश्न बाकी लोगों की भी मदद कर सकता है. So feel free to ask anything. Don't think कि मेरे सर बैठे हैं, मेरे बॉस बैठे हैं, उनके सामने पूछे नहीं पूछे. Ask anything. Do we have permission? लो जी मेरा permission. Because any question is a good question. There is no bad question in the world. Yes, मैं बच्चों को भी ये बोलता हूँ. There is no bad question. Whatever is coming in your mind, because question पूछने से आप 1 सेकंड के बुद्धू कहलाते हो, बराबर? और क्वेश्चन नहीं आपको आंसर मिलता तो जिंदगी में बुद्धू कहलाओगे. So let me know. What do you feel and what are your questions, please? Do we have mic for them? इसी से रिलेटेड पूछ लेना. भाई आप मेडिकल वाले हो पता नहीं. मेडिकल का मेरे को एनवी नहीं आता सही बताऊं. I am engineer but not. So. Because they are international best seller medicine. They would have asked it. So yes, please go ahead. देखिए, I want a big clapping for it. Thank you. Please. बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि आई एम सॉरी फॉर द स्टूडेंट्स, बट आजकल के जो जनरेशन हम देखते हैं, एटीट्यूड उनका, दे आर, आई डोंट नो हाउ टू से, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दे हैव गॉट, बट जो वर्क एटीट्यूड या वर्क एथिक्स होता है, आई एम वर्किंग इन अपोलो फॉर लास्ट 16 years, so that is lacking. So I really don't know how to kind of increase. जैसे 9 to 5 जॉब है तो 4:45 they just want to reach number 1. Number 2, throughout the day when we are moving around in the corridors or something, most of the time they are with their, Android phones and WhatsApp or whatever. So how do we change this? Very good question. Very good question. Can we make again a big clapping? Thank you, ma'am. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. ये किसके लिए पूछा गया था वैसे? मैं आपकी तरफ देख करके आंसर दे सकता हूँ? Okay. See, again, this is nothing to do with Apollo Hospital or. It is general for this It is general. generation. ये मैडम का कोई पर्सनल भी नहीं है, ये मैडम के डिपार्टमेंट की भी बात नहीं है. This is something for your own life. This is something for your own life. You have to have control of your own life. Where do you see yourself in next another 10 years, 20 years, 15 years, or I don't know, right? Now again, environment सबके लिए same है. आपके पास में choice है. आप अपने समय को इन चीजों में नष्ट कर सकते हो. आप चाहो तो उसका benefit ले सकते हो. जो हमारी जनरेशन थी या आपकी जो जनरेशन रही थी उस वक्त के अंदर में ये सब चीजें नहीं थी. Now मैंने देखा है कि ये जो टेक्नोलॉजी आपके हाथ में मोबाइल वाली टेक्नोलॉजी, दिस इज अ वेरी 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 इन्फ्लुएंसिव एंड गुड इंस्ट्रूमेंट, बट यू शुड बी वाइज टू यूज इट, व्हेन टू यूज, वेयर टू यूज एंड हाउ टू यूज. दिस इज सो सिंपल एज दैट. कई बार हमने मोदी जी के लिए उनमें भी भाषण में भी सुना हुआ है, तो मोदी जी को भी कहा जाता है कि तो इसके खिलाफ नहीं है. वो कहते हैं नहीं, इससे बच्चों को या लोगों को दूर मत कीजिए. दिस इज अ वेरी गुड थिंग. टेक्नोलॉजी से आप, लेकिन कृपा करके उसको ये समझिए कि कब और कहाँ यूज करना. नाउ मैंने देखा है कि कई लोग, मतलब आई एम सॉरी टू से, बट यस, इन द वर्क प्लेस आल्सो दे आर नॉट रियली लॉयल एंड एथिकल टू देयर वर्क प्लेस. प्लीज 8 घंटे यदि आपको जॉब के लिए मिल रहा है तो 8 घंटे यू शुड बी वेरी 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 मच लॉयल टू द कंपनी. आफ्टर दैट यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. नोबडी केयर्स फॉर दैट. बट यस,
8 घंटे के लिए, और बिलीव मी, यदि आपका मैनेजमेंट, यदि आपका कंपनी, यदि आपके सीनियर्स आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आपको वॉच नहीं कर रहे हैं. दे आर वॉचिंग, दे आर चेकिंग, दे नो दिस थिंग, बट नहीं बोल रहे हैं तो वो शायद उनकी पोलाइटनेस है, राइट? सो डोंट टेक इट कंसिडर. अगेन दिस इज नॉट समथिंग, कहीं पर तो मैंने देखा बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, यू आर नॉट अलाउड इट, यू नो, इवन टू टेक ए मोबाइल्स इनसाइड लाइक दैट. वर्क प्लेस के अंदर उनको पूरा बैन कर देते हैं. बट आई डोंट नो अबाउट अपोलो, इफ दे आर फ्लेक्सिबल अबाउट दैट. बट अगेन दिस इज योर लाइफ, दिस इज योर लाइफ. फॉर 8 आवर्स आपको जो सीखने की अपॉर्चुनिटी है वो अनलिमिटेड है. एंड ये जो चीज़ यहाँ से मिलेगी वो चीज़ आपको कहीं बाहर दोबारा नहीं मिल रही. और मैं एक सिंपल सी बात आपको मतलब जनरल वे में बताता हूँ कि आप वो करिए लाइफ में, आप वो करिए लाइफ में जो चीज़ आपको दोबारा आप वो उसका बेनिफिट आप ना ले सकें. जैसे मैं आपको समझा नहीं पाया क्या बोलूँ. जैसे कि मैं मान लीजिए अमेरिका में पेरिस गया हूँ, मान लीजिए एफिल टावर के पास में गया हूँ, ठीक है. मैं लास्ट ईयर में गया था. अब पेरिस में एफिल टावर के पास जाकर के 2 चीज़ कर सकता था, वहाँ बैठ करके और अपने दोस्तों के साथ में टक 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 चैटिंग कर सकता था, फेसबुक कर सकता था, ये सब कर सकता था वहाँ. और दूसरी चीज़ है कि एफिल टावर के मजे ले सकता था और वहाँ पर सेल्फी और बढ़िया फोटो ले सकता था. क्या करना चाहिए था मुझे? क्यों? व्हाट्सएप इंपॉर्टेंट नहीं है, फेसबुक इंपॉर्टेंट नहीं है. देखिए फेसबुक, व्हाट्सएप, मूवीज, वीडियोस, आई डोंट नो, जो चीजें हैं ये सब चीजें बन गई हैं, रिकॉर्ड हो गई हैं, क्लाउड में पड़ी हुई हैं. आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 5 साल, नहीं तो 10 साल बाद भी आप कर सकते हो. लेकिन आज आप जो अपोलो में इस वक्त में सीख रहे हो, क्या ये 5 साल, 10 साल, 2 साल बाद कर सकते हो? So you should be wise enough कि how to take the benefit of this particular time. मेरे पास भी बहुत चॉइस है, मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ. मैं यहाँ पर इंडिया में बहुत कम टाइम के लिए आता हूँ, बट आई वांट टू यूटिलाइज माय ऑल टाइम. और वो जितने भी सारे काम हैं मैंने बिलीव मी रिटायरमेंट की बात के लिए रोक रखे. वो सब मजे करूँगा, मूवीज और वो सब. सचिन तेंदुलकर की कौन सी मूवीज आ रही है, सॉरी शाहरुख खान कौन सी गेम खेल रहा है. देखिए हम लोग सचमुच में सब चीज़ों में लगे रहते हैं, हम उन लोगों को प्रमोट करते रहते हैं. आई एम सॉरी, आई एम नॉट डिग्निफाइंग एनीबॉडी, बट बिलीव मी, यदि आप सचिन तेंदुलकर से जाकर के पूछोगे ना कि अभी ऋतिक रोशन की कौन सी मूवी आ रही है, तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा मेरा अभी नेट प्रैक्टिस चल रहा है. अभी तो सचिन नहीं, अभी तो कौन है नए नए प्लेयर्स हैं, विराट कोहली. विराट कोहली से आप लेकर पूछिए, वो कहेगा आई लव शाहरुख खान, आई रिस्पेक्ट ऋतिक रोशन, बट आई एम बिजी फॉर माई नेट प्रैक्टिस. करेक्ट? ऐसी ऋतिक रोशन से जाकर के पूछो, वो क्या बोलेगा? आई लव विराट कोहली, बट आई एम बिजी फॉर माई शूटिंग. What for? You are busy or not in your Apollo? You are not busy. Please respect what you are doing and believe in you and do whatever you want. Correct? So this is the advice to the young generation. What else? और क्या questions? Yes, please. How can change some negative person to positive? अगर कोई बहुत ज़्यादा negative है, तो उसको हम कैसे positive कर सकते हैं? Thank you. What's your good name? Teacher. Teacher. बैठिए. Thank you. पहले तो बताओ कि आप चेंज क्यों करना चाहते हो? उसका attitude, जो भी वो negativity है, उसको निकाल के उसको positivity में क्या बोल? देखो मैं आपको मतलब बड़ी ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बताता हूँ. इस दुनिया के अंदर में, इस दुनिया में है भारत और इंडिया और गुजरात और अहमदाबाद के दुनिया के अंदर में आप एक आदमी को चेंज कर सकते हो. अपने माता पिता, अपने बच्चों को, अपने ब्रदर को, अपने सिस्टर को, अपने मियाँ को, अपने बीवी को, अपने हस्बैंड को, अपने ससुर को, सास को, अपने सबॉर्डिनेट्स को. किसी को चेंज नहीं कर सकते. किसको चेंज कर सकते हो? दैट इज सो सिंपल. अभी यहाँ पर पूरे कांटे बिछे हुए हैं, तो मेरे पास में एक रास्ता है, मैं पूरे कांटे निकालते जाऊँ और दूसरा तरीका चप्पल पहन के निकल दूँ. व्हाट इज इजी? अरे चेंज योरसेल्फ, चेंज योरसेल्फ. और आपने जो क्वेश्चन पूछा ये सही है. जब हमारा कोई क्लोज होता है तो हमारी इच्छा होती है कि हम उसे भी थोड़ा पॉजिटिव बनाएं. एंड बिलीव मी, नेगेटिव, आई डोंट नो, नेगेटिव आदमी नहीं बदलते. नेगेटिव भी पूरा नेगेटिव, आई डोंट नो. मैंने देखा है, कई लोगों का एक्सपीरियंस किया हो. एक साहब थे, वो अपनी बीवी पे रोज गुस्सा करते थे. बोले हे भगवान आज ऑमलेट बना दिया. तो बोले क्यों? बोले आज तो प्लेन डे खाने थे. तो अगले दिन प्लेन डे लेके आ जाती है. ओह माय गॉड, आज तो ऑमलेट खाना था. अरे तो एक दिन क्या करती है, उसकी सहेली से उसने पूछा मैं क्या करूँ. उसने कहा तो दोनों बना ले ऑमलेट. तो दोनों लेकर के आता है. अब नेगेटिव पेपर क्या होगा? खुश हुआ होगा. नेगेटिव फिर माता पिटी.
बोले तो वो कहती आज क्या हुआ? बोले अरे जिसका ऑमलेट बनाना था उसको बॉईल कर दिया, जिसको बॉईल करना क्या करूँगा भैया, ठीक है let them be, okay. Yes, so I mean you cannot change negative people, but yes, आपको अपने आप को चेंज करना है तो मैं आपको सलाह दे सकता हूँ। खुद को नहीं करना, खुद को ही पहले करना है। खुद को ही पहले करना है, खुद को ही करना है। आप चेंज करोगे तो मैं बिलीव में आपको नेगेटिव में भी पॉजिटिव दिखने लगेगा। एक आदमी ने वो बंद घड़ी को देखा तो वो बंद घड़ी को भी देख करके बड़ा खुश हो गया, कहता है इसके अंदर दिन में 2 बार सही वक्त दिखता है, बराबर ना? ऑफ कोर्स 6 बजे 2 बार तो सही तरह वक्त बता दिया घड़ी। खुद को पॉजिटिव करने का तरीका ये है कि आप अपना एनवायरनमेंट बदल दीजिए, एनवायरनमेंट बदल दीजिए। अपने नेगेटिव लोगों को बोलिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, आई लव यू, आई लाइक यू, बट आई वांट टू स्टे अवे फ्रॉम यू फॉर 5 years, थैंक यू वेरी मच। आप वो कोई भी हो सकते हैं। नेगेटिव में ये नहीं है कि आपके पेरेंट्स नेगेटिव नहीं हो सकते, आपका दोस्त नेगेटिव नहीं हो सकता, आपके कोलीग नेगेटिव, कोई भी हो सकते हैं। यू रिस्पेक्ट योर रिलेशनशिप बट डोंट सीक देयर एडवाइस, उनसे एडवाइस लीजिए मत, उनसे एडवाइस दीजिए मत। थैंक यू वेरी मच, आई रिस्पेक्ट बट आई वांट टू स्टे अवे फॉर यू फॉर एंड फीड पॉजिटिव इनसाइड। नेगेटिव से दूर रह करके आप पॉजिटिव फीड कीजिए, और पॉजिटिव को फीड करना पड़ता है, नेगेटिव ऑटोमेटिक होता है। अभी मैं आपके चैम्बर से बैक साइड में देख रहा था अपोलो हॉस्पिटल के, तो पीछे आप बहुत बड़ा जंगल सा है, राइट? वहाँ पर देखो कितने बड़ी बड़ी आम, खजूर, गुलाब के लगे हुए कैसे नहीं लगे। वहाँ पर क्या है, खरपतवार, बराबर है, जंगली लगे हुए। क्या जंगली पौधों को उगाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है? वो अपने आप उग जाते हैं। आपकी माइंड एक उपजाऊ जमीन का जैसा है, अपने आप उग जाता है। लेकिन पॉजिटिव आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसकी गुड़ाई करनी पड़ेगी, उसमें बीज डालना पड़ेगा, हवा पानी सब कुछ देना पड़ेगा, तब जा करके पौधा और अच्छी चीज। तो आपको पॉजिटिव अपने दिमाग में फीड कर दो, एंड दैट्स वे यू कैन बिकम पॉजिटिव। एंड वंस यू बिकम पॉजिटिव, लाइफ इज ग्रेट, लाइफ इज ग्रेट, राइट? व्हाट एल्स? यस प्लीज। Impulsiveness, the people are impulsive now. I am also an impulsive person in some things. So impulsiveness is a good thing or a bad attitude? So what's a good name? Taruna. Can we clap for what do you think? For me, it's positive. Why? But maybe for some, because like I can't wait for things so many for time. I want to do things very quickly, and I cannot think too much for something. I want things to be done. See, I'll tell you. I'll tell you. It is good to be impulsive, but like at a time, you cannot wear all hats on your head, right? At a time, you have to be focused on that particular thing, right? आपने वो एक कहावत सुनी होगी, मैग्नीफाइंग ग्लास, you know that magnifying glass, if you put under the sun and you put it under the carbon paper, what it happens? It burns. Why? Focus. That much complete energy goes to that. Now do one thing, shake it up, shake it continuously. What will happen? तो वो चीज हमारे साथ होती है. We are good, we are focused, but we are not focused on particular thing. So it is good at times, but not always. Correct? Yes. Yes, please. What else? Next. How to be a good decision maker and learn time management and not repeat mistakes. Allah. Very good question. क्या नाम है आपका? Mehak. है। इतने बड़े-बड़े क्वेश्चन इतने आसान से रहेंगे तो कुछ नहीं, बैठो। Please repeat, क्या बोला आपने? Decision making, Okay. time management and not Repeating the mistake. See, I'll tell you that there is nothing called good decision. There is nothing called good decision. Okay? There is a proverb that success comes from the good decisions. Of course, success comes from the good decision. आपकी जो success है वो सही निर्णय लेने पे आती है, लेकिन सही निर्णय आते हैं from experience. आपके अनुभव से आप सही निर्णय लेते हो, अनुभव से. वो गूगल से या यूट्यूब से कहीं से नहीं आता, आपके अनुभव से आता है.
and experience comes from the bad decisions. You got the message? Experience comes from the bad decision. अब इसको उल्टा लेके चलते हैं. आप जितने ज्यादा bad decision लोगे उतनी जल्दी experience बनोगे, जितनी जल्दी experience बनोगे उतनी जल्दी good decision लोगे, और जितनी जल्दी good decision लोगे उतनी जल्दी आप successful बनोगे. इसका age से कोई लेना देना नहीं है. age से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. आज आपने देखा होगा कि बाहर की कंट्रीज में या कहीं भी कई सारी जगह देखो तो यंग एज के बच्चे, जरा से बच्चे बाहर की कंट्रीज में दे आर CEOs, दे आर फाउंडर मेंबर, दे आर डूइंग अ लॉट मेनी थिंग्स, राइट. बड़े ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं. सुना आपने, देखा है? तो अगेन उनकी एज से लेना देना नहीं है. दे हैव टेकन सो मेनी डिसीजंस एंड दे आर बिकम एक्सपीरियंस. एंड व्हेन यू टेक बैड डिसीजन यू विल बी एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस से आपके गुड डिसीजन है, राइट. टाइम मैनेजमेंट, time management is like a 2-hour course. Okay, so I cannot define it. Time management is something very big, but let me tell you, you need not to manage the time. ये गलत चीज है कि लोग बोलते हैं कि टाइम को कैसे हम मैनेज करें. डोंट मैनेज टाइम. यू कैन नॉट मैनेज द टाइम. टाइम इज 24 hours. टाइम इज सेम फॉर एवरीवन. यू हैव टू मैनेज yourself, as simple as that. So manage yourself. Be wise. What you're doing, always be think that this is the right thing to do it right time or not. If you think no, I should do something else, change it. This is simple, in a simple way. Yes. And third thing you ask, how shall I not repeat the mistakes? अरे भाई सरदार जी घर के बाहर निकले, केले का छिलका पड़ा था, फिसल गए, गिर गए. अगले दिन उन्होंने दरवाजा खोला, फिर से केले का छिलका पड़ा. क्या बोलते हैं सरदार जी? आज खुला, आज फिर से फिसलना पड़ेगा. आपके ऊपर पैर कहीं और रख लूं ना. सिंपल, करेक्ट. इट्स अप टू यू. एक डॉक्टर के पास में गए, 2 कान जले हुए लेके गए. बोले सब कान जल गया. कान कैसे जल गया तुम्हारा? आग में कान टाटा चलाया क्या? बोले नहीं साहब, वो हम आयरन कर रहे थे, फोन आ गया, तुमने आयरन तो चिपका लिया. ओह वेरी सैड, वेरी सैड. तो पूरी आयरन गर्म थी. हाँ. फिर ये दूसरा कैसे चलता? पूरे साल दोबारा फोन में रहता. अरे बंद कर दो ना आयरन. व्हाट एल्स? और क्या क्वेश्चंस? We'll take maybe 1 or 2 questions more. Yes, please. As you said, listening is a good thing. तो बोलेगा कौन? Listening is a good thing. उसकी चिंता मत कीजिए. बहुत शादी हो गई? आप बोले कम पड़ रहा है. Thing is that when you listen somebody, you take a ownership to talk more. जब मैं आपको 10 मिनट सुनता हूँ तो मैं आपसे आज्ञा ले लेता हूँ कि मैं आपको 15 मिनट सुनाऊं. बट मैं आपको 10 मिनट शांति से नहीं सुनता तो मैं आपको सुना भी नहीं सकता. आप सुनोगे भी नहीं. पर मैंने भी आपको बगैर डिस्ट्रप्शन के आपको पूरा सुना है, तो आई हैव इनडायरेक्टली taken admission, taken approval from you कि I can tell what you want. तो दरअसल ज़्यादा सुनने वाले ही ज़्यादा बोलते हैं. Okay, what else? क्या हम इनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर के लिए? What else? What else? भाई सारे क्वेश्चन इधर से ही आ रहे हैं. दिन में 12 बजे के पहले सिंपैथाइज और 12 बजे के बाद. एक आदमी बोलता है कि साहब मैं शाम को 6 बजे के बाद मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता हूँ. See, it depends on situation. Again, there are people where you feel कि like the case is like that where you want to be get attached by heart. आप उससे by heart closely attached होना चाहते हो. But there would be some cases where you think that it is something you have to take, like corporate culture. I don't know. Corporate में भी आप लोग deal करते हैं. Corporate culture and all. There maybe you're dealing there. You have to sympathize, not empathize, not require.
right? But when there is a case, old lady or like somebody who want to say about it, about their problem, and they want you to feel about the problem, then of course you have to empathize. But kahin par hai straightforward, there is something like that and all. Okay, yes, go ahead. Correct. So it depends on, you know, situation to situation. But yes, sympathy का जो next version है, that is called empathy. If you empathize, you go one step further and you get connected more closely. That is the main crux. Yes. What else? So इधर वाले लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्यों भाई? नहीं पूछ रहे, क्यों भाई? अच्छा, नहीं क्वेश्चन नहीं आते, उसका दो रीजन होते हैं. चलो रहने दो, नहीं पता. जो कैलकुलेटर पर एक बटन होता है AC, जानते हो? सबने सुना देखा है? क्या मतलब होता है AC? एयर कंडीशन. बोला ऑल क्लियर. AC नहीं होता? उसको दबाने से AC ऑन नहीं होता? अच्छा, यहाँ नहीं होता. ऑल क्लियर का क्या मतलब होता है? पूरा साफ. तो नो क्वेश्चन आने का मतलब है या तो पूरा अंदर या पूरा बाउंड. So maybe one more question and then we'll wrap up. Yes, please. कोई ऐसे टास्क होते हैं, कुछ काम के लिए बोलते हैं, तब ऐसा सामने वाला जो बंदा था वो रिस्पॉन्ड करने के बदले रिएक्ट करता है. कोई भी टास्क के रिएक्ट करते हैं रिस्पॉन्ड के बदले, तो उसको कैसे हमें कन्विंस करना है कि ये काम के लिए तैयार कर कैसे करना है? थोड़ा सा उसको और, जैसे कि कोई ऐसा टास्क दे दिया कि ये करना ही है, तो हम एक्सप्लेन करते हैं, तब उनका रिएक्शन होता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, तो उसको पॉजिटिवली उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए ये हो सकता है. तो इसके लिए कैसे उसको हम कर सकते हैं कि ताकि कन्विंस कर सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है. मतलब आप किसी को कुछ काम करने को बोल रहे हैं और वो सामने वाला बकत सुने और वो पहले बोल रहा नो, so you want it to be done, right? So see again, you cannot control people. There are typical people also, there are simple people also, there are positive people also. जैसे वो माइनस प्लस और न्यूट्रल होते हैं. तो न्यूट्रल वाला आदमी वो तो आपकी बात से कन्विंस होकर के कर देगा. पॉजिटिव वाला है वो तो आपकी जरूर कर देगा. आप जो भी बोलेंगे, जैसा भी बोलेंगे, वो कहेगा यस मैडम. एटलीस्ट ट्राई करेगा, एटलीस्ट अपना इंटेंशन दिखाएगा करने के लिए. लेकिन निगेटिव वाला भगवान आई डोंट नो, ही विल नॉट, आई एम सॉरी, वो नहीं करेगा. देखिए अगेन थिंग इज दैट you have to be wise enough to give the task, to give the particular task to the particular person. बराबर है? अभी फिर जो बेचारा करता है वो करता ही जाता है, दूसरे लोग नहीं. अगेन काम उससे ज्यादा नहीं देना है. You have to be intelligent and wise enough to distribute the task as per their capabilities. You know, आप बहुत माहिर हैं, बहुत अच्छे हैं पब्लिक रिलेशन में, but you are not good in the back end work. But मैं चाहता हूँ नहीं आप तो अंदर का ही काम करिए, आप ये करिए, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ. Why? She is happy. I want that also. Replace. Tell her कि please do that job. So again, you have to be wise enough कि to whom you have to give the particular task. There are people कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ उनका चॉइस होता है. And believe me, जब आप उस आदमी को सही जगह फिट करते हो तो आपको unbelievable results मिलते हैं. आप सोच नहीं सकते वो इतने बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं. तो it depends personality to personality. But I'm sorry, negative आदमी को you cannot convince. Right? What else? Anything else? Any more questions? Yes, please. Namaste. Sir, I Namaste. would like to ask you one question. Please. That most of the people, they are having same situation, same stamina, or same confidence, same positive thoughts. But what make a person differ from others? Like Black Cat Commandos, they are getting same type of trainings. They are having same type of hard work, same type of body language. But some of the people, they are so special, so different from others. So I would like to know that what make individual other from difference or other special from others. Very good. What's your name? Saurabh. Saurabh. Thank you. Can we clap for Saurabh, please? मेरे पास आपके गौर एक सिंपल सा वर्ड है, सिंपल. मैंने आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले. क्या बताया था? Attitude. Next. Yes, you are right. Sometimes when we are having attitude, Yes. society behave like oh my god, very arrogant, very attitude. मतलब हर चीज के डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं sometimes.
अगर कुछ लोग उसको पॉजिटिव वे में देखते हैं, कुछ लोग उसको देखते अरे यार बंदा काम का नहीं है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, इस टाइप की पर्सनैलिटी है, और कुछ लोग होते हैं उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड वाली जो चीज़ है ना, ये कई बार कुछ लोगों के लिए हार्मफुल होती है, और यही रीज़न है कि हम समाज में कई बार आगे नहीं बढ़ पाते। मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, बट एक जनरल बात कर रहा हूँ जो आज हमारी सोसाइटी में, हमारे एनवायरनमेंट में होती है। Perfect, perfect. You are right. It happens. It is everywhere. सब जगह ऐसा होता है. Let me tell you very openly, frankly, that what special thing differs you from other is the only attitude. Is the only attitude. Now, if we are trying to listen and care and check about others, then you will be nowhere. वो कहावत है ना कि दुनिया ऊपर उनको वो ऐसा भी अच्छा नहीं लगता और वैसा भी अच्छा नहीं लगता, तो आप क्या करोगे? तो आई वुड से डू नॉट केयर अबाउट अदर्स, डू नॉट केयर अबाउट अदर्स। आपका दिल, आपका जहन मानता है आप अच्छा काम कर रहे हो, आप सही काम कर रहे हो, आप करिए पैशन के साथ, विथ अ पॉजिटिव एटीट्यूड, एंड डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। But again, if you have ears open all the time, listening, evaluating and taking feedback, why? What for? Not required. You are doing something, अपोलो में आते हो, रोज सुबह आते हो, जॉब करते हो, यहाँ से जाते हो, अपोलो के लिए कोई आपको पड़ोसी जाकर बोलते हैं ये क्या पागल से काम कर रहा है, हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल से आता है, ये कोई काम करने का होता है, तो आप छोड़ोगे क्या? You will not. But some places we think that no, we should seek advice. Not required. Not required. If you think, khalas, do it. Right? There is a story, chalo story नहीं बताना. So any other question, please? Right? So we'll just wrap up. मैं आपको अपनी बुक के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा and then we'll close it. So this is the book which has been authored by me recently, from dreaming to achieving in life. This is a step-by-step guide for guaranteed results of any strategy. You know, in this book I have written like what are the secrets to be successful, and that has been designed very engineered way in a correct way. आपको भी पता है, ऐसा नहीं है इसमें कोई नई चीज नहीं लिखी होगी, लेकिन वो सिस्टमैटिक तरीके से है कैसे इंप्लीमेंट करना है. एंड देयर इज अ 21 days easy process, practical process how you can implement it. Because again, knowledge की आज जरूरत नहीं है और कमी भी नहीं है. नॉलेज किधर है? गूगल. हर बंदे के पास में आजकल वो बच्चे भी किसी से नहीं पूछते, सब गूगल में लगे. तो नॉलेज इज टू मच एवरीवेयर, बट हाउ टू इंप्लीमेंट? बिकॉज यू डोंट नीड नॉलेज, यू नीड रिजल्ट्स. So for results you want specific thing कि ऐसा करिए और ये मतलब. So I try to write this thing in the book, and this is available on Amazon, Flipkart and all, right? And then it has become a bestseller as well. Now this is final. Thank you very much. But before that I need your positive feedback. Can I get feedback? Yes. Okay. So I want the feedback right now from your smartphone. Okay. On your smartphone, make the data on, and I'll let you know how you can give the feedback. What is the price of the book? Good question. So like once you open the phone, you can go to Google Maps. Okay. Google Map पर आप जाएंगे तो Google Maps पर आप सर्च करेंगे I am Vinod Tiwari as single word, one word. I am Vinod Tiwari. You will find mentor of change written over there, and there you can rate stars and you can write review. Because this is the very important thing which I seek from you. गूगल मैप्स में आप सर्च करेंगे I am विनोद तिवारी सिंगल वर्ड, तो I am विनोद तिवारी सर्च करेंगे, वहां पर आएगा मेंटर ऑफ चेंज और इस तरीके का फोटो आएगा, और वहां पर रिव्यू का बटन होगा. यू कैन रिव्यू एंड राइट, यू कैन रेट एंड रिव्यू, स्टार्स रेट कर सकते हैं और वहां पे एक छोटा सा मैसेज भी ले सकते हैं. Let's give a big round of applause. Hope he is able to inspire all of us.
session found very, very inspiring. Isn't it? Yes. Good. As he said, how the passion you can develop within you, don't find anywhere outside. So it's true, when we are working at your stations, always give 100% if you are at work. Otherwise, take a leave that day. If you are working at your stations, people at the other side coming with big hope. How you can give a smile to those faces? They are coming here. So give the 100%. That is the passion if you have to develop and deliver. You are earning money, getting salary, but the God has chosen you to serve in hospital, as you mentioned. That is the opportunity you have to, and everyone has to, grab this thing while you are in healthcare working. So that is the short things. And everybody is knowing many things. The Google is across. But how much you are going to implement? Today is lovely topics, lovely how you can develop your personality. Everything is within you. So find out and adopt and implement. That is the way. So it's really a big round of applause for you once again. We say that lifestyle today is giving a 50% disease, right? Yes. Hypertension, disease, burdens, BP. So we also don't want people to become sick. So we have preventive checks, right? Yes. You're also doing your marketing. No. This is the preventive check. How you can prevent, because how you manage your body, how you inspire yourself. Everything is related. It's not like that you are just delivering your service, but you are maintaining your body. How you can make your body fit and healthy and preventable things. So I request our CEO to please give a memento and a book on healthcare journey by our chairman. Okay. Please. Thank you very much, Vinod. So really we had a wonderful session. This is just a beginning. We're not going to just give you goodbye, because you have been very busy schedule. You have taken time out and given these sessions. Believe me, Apollo is not only one Apollo in Ahmedabad, as you know, there's many places. So definitely I will request CEO to recommend for other places and request to make at least such sessions to be there. So from our side, definitely we are going to do that way. I'm really thankful for all these contributions. Thank you very much for that. So थोड़ा कम क्लोजर आमा हो गया